Assalamu alaikum and a very warm welcome to all the amazing women who have joined us today. I am truly honored to welcome you all to the Women's Day that we have organized by the Empowered Circle. Today is, I guess, not just a celebration, it's the reminder of the strength, resilience, achievement of women around us. वुमेन्स जो है ना, एक मेरे हिसाब से वुमेन के बहुत सारे रोल्स होते हैं. When we are daughters, then we are like sisters, we are mothers, we are wives, and every role, हर रोल में हमारी जो खवातीन है ना, they are giving their best, I believe. मेरे ख्याल से खवातीन के लिए being a housewife, managing the household things, and being a working woman, managing both the things equally, दोनों चीजों को टाइम देना, दोनों चीजों को अपने बेस्ट तरीके से करना, that is actually the art of a woman. Now today आज हम वुमेन्स डे पे हैं तो सही, बट आई बिलीव फॉर एम्पावर्ड सर्कल मेरे लिए हर डे इज अ वुमेन्स डे, बिकॉज आई एम लाइक वर्किंग ऑन दी वुमेन एम्पावरमेंट. और हम जब बात कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, तो वो मेरे लिए ये होता है कि every woman has their skill, every woman is like they have some qualities and all. मुझे मेरा काम, what I plan कि just हमें थोड़ा पुश करना है एक दूसरे को. We need support, we need help, we need encouragement for each other. So we are just giving it a day, Women's Day, but I'm trying to manage it in best way कि मेरे लिए हर दिन Women's Day होगा. I want to value all of you, all women, those who are already doing great in their platforms, जो ऑलरेडी बहुत कुछ कर रही हैं. हमने जस्ट जो है ना एक रिकग्निशन चाहिए, हमने जस्ट एक दूसरे की सपोर्ट चाहिए है. सो इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज एक्चुअली टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन एंड टू रिमाइंड आवरसेल्फ दैट वी आर वैल्यूड. हम जो कर रहे हैं, वी आर डूइंग बेस्ट. लाइक it's for all of you that you people are doing great in your own fields, you people are doing great in your own roles, whether you are mothers, housewife, you people are already valued, you people are great. So आज का दिन सिर्फ आपको एक अलग रिमाइंडर सिर्फ देने का है that you people have that power that I believe एक औरत जो है ना, वो अगर चाहे तो she can rule the world, she can do anything. एक औरत के लिए nothing is like impossible. If she want to do something, she can do. So this day and this platform is for all the women. I want to I'm really thankful for all of you for being here with me, for being the part of the Empowered Circle. You people are here with me, and without your support, definitely this platform will not be, running the way we want to. I always wanted a platform जहाँ पे ना हम एक दूसरे की आवाज बन सके, हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सके, हमें अपने प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन मिल सके, हम एक दूसरे को अपलिफ्ट कर सके. So this is what my vision is behind creating this Empowered Circle platform. और आज का दिन is all about encouraging those women, that those who are doing like whatever they are doing in their field, हमने सिर्फ एक दूसरे को encourage करना है. And today is the day on which we can discuss some meaningful communication, having some meaningful communication, जहाँ पे हमें लग रहा है जो चीजें हमारे लिए, खवातीन के लिए बहुत जानना important है. We are going to talk about all those topics because हमारा मकसद वही है, एक दूसरे को uplift करना, एक दूसरे को encourage करना. So yes, we have thank you so much everyone for joining. We have 4 speakers today and we have success stories as well. I believe हर किसी की एक success story होती है. We all women here in my group, I have interacted with all, I know everyone, और सबकी एक अलग stories हैं, and they all are doing great, and I'm really glad that हमारे platform पे इतनी successful, professional and strong women हैं. So thank you so much everyone for joining here with me today. So I'm going to start, we have 4 speakers today. And we are going to start with Ms. Nida Kashif. Ms. Nida Kashif is a mindset and power coach. She is also a trainer, and she is today going to talk about the power of mindset. अच्छा, जैसे हम different important topics पे बात करेंगे. So the first one is the power of mindset. Mindset का हमारी life, हमारे success, हमारे confidence पे क्या असर है, किस तरह how we can move towards a positive mindset. So Ms. Nida is going to talk about it today. Over to you, Ms. Nida. Assalamu alaikum. Thank you very much, Maria, for providing me this platform. और जो है मुझे आपने जो है इस opportunity दी मुझे, और ये समझा कि I can share some insights. So mindset वो बेस है जहाँ से सक्सेस जो है ना स्टार्ट होती है. ये एक जो है ना परसेप्शन है, और ये बिल्कुल सही परसेप्शन है. वजह क्यों है कि माइंडसेट क्या है?
वो एक ग्लासेस है बेसिकली, कि जिस नजर से आप जो है सामने वाले को, जिस नजर से आप जो है ना बेसिकली दुनिया को देख रहे हैं। हमने अपनी लाइफ में बहुत सारी सी खवातीन देखी होती हैं जिनके लाइफ स्ट्रगल्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, जिनका लाइफ का जो एक प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके लाइफ के जो उनके पास जो आसानियां होती हैं, सब चीजें बहुत सेम होती हैं, लेकिन एक अपनी जिंदगी को जो है ना ऐसे अंदाज में गुजार रही होती है कि लोगों के लिए मिसाल बन जाती है, और दूसरी जो होती है वो ऐसे गुजार रही होती है कि वो जो है ना अपने आप में एक विक्टिम होती है। क्यों? क्योंकि लाइफ को उन्होंने जिस तरह परसीव किया है वो इम्पोर्टेंट चीज है। इसके लिए बहुत छोटा सा एक मिसाल देती हूँ। जैसे एक शख्स जा रहा है पहाड़ी इलाके के अंदर, और वो आप लोगों ने सुना होगा, ये बहुत सारे लोग गए भी होंगे, जो मरी और इस टाइप की जो हिल्स एरिया है उसके अंदर जो है एक ऐसा रास्ता होता है जो ऊपर घूम के बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा होता है, राइट। उस रास्ते की एक तरफ बिल्कुल बिल्कुल प्लेन ब्राउन और बिल्कुल मिट्टी वाले जो ना पहाड़ होते हैं, जबकि दूसरी तरफ वादी में बहुत हरा भरा जो है ना एक नजारा होता है। ऐसा होता है। अब यस, एक बिल्कुल। शख्स जो है बैठा हुआ है उस वादी के साइड पे, उस खिड़की में जहां से वादी नजर आ रही है, और एक शख्स बैठा हुआ है जिसको वो सारी की सारी जो है माउंटेन्स नजर आ रही हैं। तो दोनों बेसिकली सफर एक ही जगह पे कर रहे हैं, सही लेकिन बात है, नजरिया उनका डिफरेंट। एक का नजारा डिफरेंट है और एक का परसेप्शन ऑफ लाइफ डिफरेंट है। वो कहेगा क्या खूबसूरत नजारा है, उसके लिए वो सफर खूबसूरत बन जाएगा, और एक शख्स के लिए वही सफर जो ना बोर बन जाएगा और उसको लगेगा जिंदगी गुजर ही नहीं रहा है सफर। लेकिन उस शख्स को क्या करने की जरूरत है? सिर्फ अपनी नजर एक साइड से दूसरी साइड करने की जरूरत है। उसको अपनी आप पूरी लाइफ को चेंज करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हमारे जैसे एक मेरे एक कोच हैं, वो एक बड़ी प्यारी बात करते हैं, नजर बदलो नजारा बदल जाएगा। True. हमें अपनी जिंदगी के नजारे को बदलने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास इस वक्त कम टाइम है। तो मैं एक छोटी सी बात से जो ना अपनी शुरू भी करूंगी और इसी बात पे मैं खत्म करूंगी, वो ये कि यूजुअली जो है होता ये है कि जिस वक्त जो है हम स्टार्ट करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी जो मैंने लाइफ स्टार्ट की है प्रोफेशनल लाइफ, वो मैंने स्टार्ट की थी किस टाइम पे? मैंने अपनी लाइफ स्टार्ट की थी तकरीबन शादी के अपने 17 साल बाद, जब मेरे माशाल्लाह 7 बच्चे हो चुके थे। इवन मैंने अपनी पढ़ाई जो रीस्टार्ट की थी वो अपनी शादी के 10 साल बाद स्टार्ट की थी, और मेरा छोटा बच्चा जो था वो उस वक्त 5 साल, सबसे छोटा 5 साल का था, और 5 साल का नहीं, सॉरी 5 बच्चे थे और मेरा सबसे छोटा वाला जस्ट 2 इयर्स का था। इवन ही वाज ऑन मदर, और मैं उस टाइम पे उनको अपने साथ लेके जाती थी और मैं ट्रेनिंग सेशन करती थी। इवन मैंने अपना फाइनल ट्रेनिंग जो दी है उस वक्त वो मेरी गोद में था, और मैंने अपना जो फाइनल ट्रेनिंग का एग्जाम दिया है उस वक्त मेरी गोद में बैठे हुए एग्जाम मैंने दिया है। इस तरह मैंने एग्जाम दिया है। उस वक्त मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज थी कि बहुत लेट हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया और मुझे पहले से स्टार्ट करती तो सही था। लेकिन वही मैंने स्टॉप किया, और मैंने वही स्टॉप करने के बाद सोचा कि अच्छा ठीक है, जो लेट हो गया क्या मैं वापस ला सकती हूँ? जो कुछ गुजर गया क्या मैं उस चीज को वापस से रिपीट कर सकती हूँ? जो कुछ भी लाइफ में चला गया, जब ये सवाल जो था ना, ये सवाल ने मेरी लाइफ चेंज की। दिस क्वेश्चन एक्चुअली शिफ्ट माय माइंड। ठीक है, वो चीज आ नहीं सकती, अब क्या करें? फिर एक दूसरा हर्डल आता है लाइफ में कि ठीक है, इसका मतलब ये है कि टाइम क्योंकि इतना गुजर गया है तो अब हमें क्या करना है? अब हमें उस टाइम का कंपनसेशन करना है। यानी अगर हम पहले एक स्टेप लेते तो अब हमें उस 10 साल के 10 स्टेप लेने होंगे। यहाँ भी रुके और यहाँ आप ये देखें कि क्या ये पॉसिबल है, ये किसी भी अंदाज में पॉसिबल है। ऑब्वियसली एक आंसर आता है कि नहीं, आप 10 स्टेप नहीं, हाँ 2 स्टेप ले सकते हैं लेकिन 10 स्टेप नहीं ले सकते। मे बी आप इतने अच्छे मल्टीटास्क करो कि आप 3 स्टेप एट अ टाइम ले, लेकिन आप 10 स्टेप और 10 साल का कंपनसेशन कभी नहीं कर सकते। ऐसा है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब इंसान अपने आप से पूछ लेता है कि क्या ये लेट हो गया मुझे, और अगर लेट हो गया तो क्या कंपनसेट करने पड़ेगा उन सवालों को, जब इसका उसको जवाब मिल जाता है तो उसको पता होता है कि अगर मैंने अभी स्टार्ट किया तो ये बेस्ट टाइम था मेरे लिए स्टार्ट करने का, क्योंकि ये मेरे लिए लिखा हुआ था ये टाइम। दूसरा कि मुझे कंपनसेट करने की या मेरे चारों तरफ जो इतनी सक्सेस स्टोरीज हैं उनको उनको देख के ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये देखो कि कहाँ पहुंच गए ये लोग, बल्कि मुझे अपनी स्टोरी खुद लिखने की जरूरत है। क्योंकि जिन लोगों ने स्टार्ट करके आज अपनी सक्सेस स्टोरी बनाई है ना, वो भी किसी टाइम पे पॉइंट 0 पे थे। तो हमें इन क्वेश्चंस को सबसे पहले अपनी जिंदगी में शामिल करना है, और क्वेश्चंस को जिंदगी में शामिल करना है कि हमसे कोई भी सवाल करे, हमारे ऊपर कोई भी किसी बात पे हमारी हो कि आप पीछे रह गए या आपने इतना अचीव कर लिया, तो आप उनको
एनकरेज भी कर सकते हैं इन सवालों के जरिए, और उनको जो है आप ये बता भी सकते हैं कि आपने जिस भी टाइम से स्टार्ट कर रहे हैं ना आप, वो टाइम आपके लिए बेटर है, बेस्ट है। बल्कि इवन मेरे चारों तरफ बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जिनसे मेरा इंटरेक्शन रहता है, और बीइंग अ माइंडसेट कोच मेरे बहुत सारे जो है सेशंस होते हैं, जो 1-to-1 सेशंस होते हैं। इसके अलावा मैं ग्रुप कोचिंग करवाती हूँ, ट्रेनिंग करवाती हूँ। तो बहुत सारी खवातीन मुझसे पूछती हैं आपने कैसे किया ना, तो मैं उस पर बोलती हूँ मैंने सिर्फ ये काम किया था कि मैंने किसी से कंपैरिजन नहीं किया था। बिकॉज ये जो कंपैरिजन माइंडसेट होता है ना, ये आपको लेके चला जाता है विक्टिम माइंडसेट की तरफ कि हाय मैं बेचारी, मुझे तो ऑप्शन ही नहीं मिले थे, मेरी तो लाइफ ही ऐसे स्टार्ट हो गई। लोगों के हस्बैंड इतने अच्छे होते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, या उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो उनको जो है ना सपोर्ट करते हैं, या कुछ भी। तो पहली बात ये है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस टाइम से भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, अपने आप को यूनिक समझें। अपने आप को ये समझें कि आपने अगर इस टाइम पे स्टार्ट किया तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है, और आप यूनिक हैं। आपके पास अगर यूनिक है, और आपके लिए पावरफुल चीज कुरान में आपको दे दी गई है, जिससे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट आप किसी तरह नहीं कर सकते, वो है इन्ना माल उसरी युस्रा। यानी हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो अगर आपकी लाइफ में किसी टाइम पे मुश्किल आ गई है, तो उसके साथ जो आसानियां है वो आप ढूंढें। वो कहते हैं ना, आप माइक्रोस्कोप में अगर नीचे माइक्रोस्कोप में एक जो है जर्म का जो है ना स्लाइड रखेंगे, तो आपको वो जर्म ही बड़ा होकर नजर आएगा। अगर उस माइक्रोस्कोप स्कोप के अंदर आप कोई अच्छी चीज रखेंगे ना, तो आपको अच्छी चीज ही बहुत ज्यादा जो है ना माइक्रोस्कोप के बड़ी नजर आएगी। आपका फोकस अगर होगा कि आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम्स बड़ी हैं, तो आपको प्रॉब्लम ही बड़ी होकर नजर आएगी। अगर आपको लगेगा नहीं आसानियां भी साथ में हैं, तो उसका जो मैग्नीफाइंग जो ग्लास है ना, उसका शिफ्ट हो जाएगा आपकी आसानियों की तरफ। एंड देन अगेन ग्रेटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपकी जिंदगी में है ना, पहले उसको शुक्र अदा करना शुरू कर दें। मैंने बहुत सारी खवातीन को देखा है कि जब वो मेरे जो है बच्चों का सुनती हैं, तो कहती हैं हमसे तो 2 बच्चे नहीं पलते, हमसे तो आप कैसे कर लेती हैं। तो मैंने कहा देखिए, मुझे शुरू के अंदर जो है ना बहुत सारे लोगों ने इस बारे में बोला था, और जो है ना क्या कहते हैं, मैंने बहुत ऐसे देखा है, मैंने उन पर एज ब्लेसिंग देखना शुरू कर दिया। जब मैंने अपने बच्चों का एज ब्लेसिंग देखना शुरू किया ना, तो मुझे अंदाजा हुआ कि मैं इन ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में किस तरह जो है अपनी आसानी के लिए भी जो है ना उनके साथ में काम कर सकती हूँ मिलकर। मैं इनको अपनी बजाय इसके कि मैं उनको अपना बर्डन बनाऊं, मैं कैसे इसको टीम बना सकती हूँ। मेरी माइंडसेट शिफ्ट का और दूसरों की माइंडसेट शिफ्ट के लिए बड़ा प्यारा एक जो है ना बुजुर्ग का कॉल है। वो कहते हैं कि लोग आपको पत्थर मारेंगे, ठीक है, लोग आपको पत्थर जरूर मारेंगे, आपको जो माशरा होता है वो आपको डिमोटिवेट भी करेगा, लेकिन आपका काम यह है कि या तो आप पत्थरों के नीचे दब के अपने आप को खत्म कर लें, अपनी पहचान को, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी लाइफ को, अपनी खुशियों को, या फिर उन्हीं पत्थरों को जमा करके पुल बनाएं और उस रास्ते से क्रॉस करके अपने लिए जो है ना कामयाबी की राह बनाएं। तो ये आपके ऊपर है। चीजें आप हर चीज के पास, हर इंसान के पास अपॉर्चुनिटीज जरूर होती हैं, और अगर इंसान बैठ के सोचे तो उसको अंदाजा होता है कि अपॉर्चुनिटीज हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अगेन, अगर आपकी लाइफ में, और 100% हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई छोटी बड़ी एक फेलियर की जो है ना मूवमेंट जरूर आती है, जब इंसान को लगता है कि वो फेल हो गया। सही है, अगर आप चाहें तो उसी फेलियर को अपनी जिंदगी में लेके बैठ जाएं कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत शख्स पे ट्रस्ट कर लिया, मैंने अपने लिए बहुत गलत डिसीजन ले लिया, मैंने अपनी लाइफ के अंदर जो है ना कुछ अचीव नहीं किया अभी तक, मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। ये फेलियर मोमेंट्स आती हैं इंसान की जिंदगी में। यहाँ जो है ये फेलियर मोमेंट्स जो है ना, इनके अंदर भी आप 2 तरह से देख सकते हैं। या तो आप ये देख लें कि फेलियर मोमेंट्स आ गई और उनको लेके रिपीट करते रहे, और एक लूप बन जाएगा जो आपके दिमाग के अंदर जो है ना एक बिलीव बना देगा दैट यू आर अ फेलियर एंड यू कांट डू एनीथिंग। बिकॉज हमारा माइंड बिल्कुल उस बच्चे की तरह होता है, जिसके बाद साथ हम जो भी रिपीट करते हैं ना, वो उस बच्चा जो ना उसको 100% मान लेता है। अगेन इसी चीज को अगर आपने इस तरह शिफ्ट कर लिया कि ठीक है मुझसे फेल हो गया ना ये चीज, नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं अपने आप से भी करती हूँ जब मुझसे कोई गलती हो जाती है। अभी मुझसे अगर कोई गलती हो जाती है, तो मैं अपने आप से सवाल करती हूँ ठीक है हो गई, अब क्या करें। इवन आप एक छोटा सा घर के अंदर एक खाना पका रहे हैं, वो जल गया, क्या करेंगे। सबसे पहले तो उस खाने को छुपाएंगे कोई और ना देख ले ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, या तो उस टाइम देखेंगे कि इस टाइम में हम क्या खाना कंपलसेट कर सकते हैं, ठीक है। या तो ये होगा कि बैठ के इंतजार करेंगे कोई आएगा और हमें बोलेगा कि तुमसे हो गया, जल गया खाना,
तुम यही करती हो, तुम्हें खाना ही चलाना आता है, तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम क्या कर रही हो। मतलब अपने आप को ये तो प्रिपेयर करेंगे, अब मुझे आएगा, कोई बोलेगा, कोई सुनाएगा, कोई डिसरिस्पेक्ट करेगा, या फिर आप क्या करेंगे, अगर आपका पॉजिटिव माइंड सेट होगा तो आप कहेंगे चलो अब जल्दी से खाना बनाते हैं। उसी तरह आप अपनी जो भी फेलियर्स है ना, उनमें से लेसन निकालना शुरू कर दें कि अच्छा मुझसे ये चीज हुई थी ना, अब मैं इसको ये नहीं करूंगा, ये चीज हुई थी ना, मैं ये नहीं करूंगा। अगर ये फेलियर को लेसन के तौर पे नहीं लिया जाता तो आज आप और हम जो अपने कमरों के अंदर लाइट जला के बैठे हुए हैं, तो यकीनन ये लाइट हमारे साथ नहीं होती। हमें सबको पता है कि कितनी अटेम्प्ट तो कितने फेलियर के बाद जाकर जो ना एक बल्ब बना था। ऐसा ही है। True. इसी तरह जितनी भी आप लाइफ की सक्सेस स्टोरी देखें, उनके पीछे फेलियर जरूर हैं। तो फेलियर्स बेसिकली आपकी लाइफ को जो है कैटलिस्ट होते हैं आपकी लाइफ के, वो आपकी लाइफ को आगे बढ़ने में मदद देते हैं। और दूसरा परसेप्शन ये है कि अगर आपने अपनी लाइफ से जो भी आपने ली ना मिस्टेक्स, जो भी आपने अपनी लाइफ के फेलियर से आपने जो भी कुछ अचीव किया, उसके साथ साथ आप अपने साथ साथ जो दूसरे लोग हैं, आप उनकी लाइफ से भी कुछ चीजें सीख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी ट्रू। तो ये सब चीजें हैं। तो सबसे चीज ये है कि अगर मुझे लेट हो गया तो अब मुझे क्या करना है, क्या मुझे बैठे रहना है या मुझे आगे बढ़ना है। और इट्स नेवर टू लेट, अपने आप को सिर्फ ये बताना है। दूसरा ये कि आपको सब कुछ एक साथ करने की जरूरत नहीं है, वन स्टेप एट अ टाइम। क्योंकि आप एक चीज करके जब उसको फोकस करेंगे ना, तो वो आप उसको जल्दी अचीव कर लेंगे, बजाय इसके कि आप ये सोचें कि मुझे लेट हो गया। क्योंकि जब आप लेट होने का सोचेंगे ना, तो आपके माइंड को ये जो है ना एक जो है ना मैसेज जाएगा कि अब तो मुझे लेट हो गया, तो मुझे सब कुछ करना है जल्दी जल्दी। और जब इंसान जल्दी जल्दी बगैर कुछ सोचे समझे करता है, तो अनफॉर्चुनेटली, और ये जो हमारे चारों तरफ के एक्सपीरियंस से भी क्या होता है, वो मुंह के बल गिरता है। तो बजाय ऐसे कि हम जल्दी जल्दी सोच के जल्दी जल्दी करने की शुरू करें, उन सब चीजों के अंदर एक गोल सेट कर लें कि पहले मुझे ये हासिल करना है, फिर मुझे ये हासिल करना है, फिर मुझे ये हासिल करना है। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं अपने क्लाइंट्स को भी कहती हूँ, वो ये है कि अपना जग फुल रखिए। आप एक जग हैं जो दूसरों को जो है ना पानी दे रहे हैं, और आप ये देखिए कि आप जिसको अपनी एनर्जी दे रहे हैं ना, उसकी कैपेसिटी क्या है। अगर वो ग्लास की कैपेसिटी रखता है ना, तो उसको ग्लास के हिसाब से दीजिए। अगर वो जग की कैपेसिटी रखता है, उसके बावजूद भी आप उसको जग के अपना जग उसके ऊपर खाली मत कीजिए। अपनी कैपेसिटी हमेशा फुल रखिए, क्योंकि जब तक आप चार्ज नहीं होंगे, आप किसी को कुछ नहीं दे सकते। तो अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज कीजिए, और अपने आप को प्रायोरिटाइज करना कोई गिल्ट की बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। लोग आपको गिल्ट करवाते हैं, लोग आपको शर्म भी दिलवाते हैं, लेकिन आपकी लाइफ को जो सही ड्राइव करने वाला और सही तरीके से आपकी लाइफ को जो है ना जिंदगी में आगे बढ़ाने वाला जो ड्राइवर है ना, वो आप खुद हैं। ड्राइवर सो जाएगा ना, तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो यू आर अ ड्राइवर। तो अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, अपने आप को एनर्जाइज करें। और हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल दी वुमेन्स। और हर रोज, जैसे मारिया ने कहा, एक्चुअली वुमेन डे ही होता है, क्योंकि सुबह जो है वुमेन सबसे पहले उठती है, वही पूरे घर को चलाती है। थैंक यू सो मच मारिया, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच निदा, दिस टॉपिक इज रियली लाइक टचिंग माय हार्ट, और इस पे तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारी बातें होनी चाहिए। एंड द वे यू हैव विद इन फ्यू मिनट्स आपने जितनी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की, आई विल सम अप दिस के जो है ना, आपने एक बात की कि ग्रेटिट्यूड जरूर हमने करना चाहिए। एंड देन इट कम्स कि आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट हाउ यू ओवरकम उसको आपके बैठ के अफसोस नहीं करना है। हाउ यू आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, आपको खुद को कैसे अपलिफ्ट करना है, खुद को। आई बिलीव, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगी, मुझे लगता है सबसे ज्यादा ना हमें अपने कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। हम जब तक दूसरे आपको इवेल्युएट करेंगे, सजेशंस देंगे, बट जब आपका वो खुद विल पावर होता है ना, जब तक आप वो नहीं होगा ना, देन यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस वो होना चाहिए कि अप्स एंड डाउन्स के बाद भी हाउ यू आर कमिंग ओवरकमिंग, और आप आगे कैसे बढ़ रहे हो, दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच निदा फॉर योर थैंक यू वेरी मच and your comments. थैंक यू सो मच एवरीवन, Thank थैंक you. यू सो मच। Okay, next we have Dr. Lala Rup. Dr. Lala Rup जो है वो एक ट्रेनर भी है, and she is a social activist. और Dr. Lala Rup हमें जो है she is going to talk about financial independence खवातीन के लिए कितनी जरूरी है, और how it is important. Obviously we all know its importance आजकल, पर कुछ ऐसे जो है ना insights हमें Dr. Lala Rup आज बताएंगे, which will be obviously changing your mind, और कुछ नए insights आपके लिए जरूर आएंगे। जी Dr. Lala Rup, over to you. Assalamualaikum. First of all, thank you so much, Maria and Empower Circle, for having me here.
on this very special day, that's Women's Day, and Happy Women's Day to everyone who is present here Thank you and same and to you. whoever is listening. So Maria ने सुनाई थी बहुत अच्छा. This is a very good platform, and मतलब you have brought up such amazing topics to talk about. Although, as you rightly said, every day is a Women's Day. क्योंकि कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिससे अगर आप women का कोई भी रोल माइनस कर सके. So we were listening about mindset. निदा काशिफ ने बहुत अच्छी और प्यारी बातें की. तो उसी को मैं कंटिन्यू करूंगी कि बिल्कुल देखिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए भी फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इज योर माइंडसेट. ठीक है कि आपका माइंडसेट किस तरीके का है. जैसा आपने कहा कि लोगों की जिंदगी में अप एंड डाउन भी आते हैं, लेकिन बात वही होती है कि उससे आगे कैसे बढ़ा जाए, हाउ टू मूव फॉरवर्ड. ठीक है, ऐसा नहीं होता. ऑब्वियसली हर एक लाइफ में गुड फेजेस भी आते हैं, बैड फेजेस भी आते हैं. लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, और हमेशा एक जैसा टाइम या एक जैसा फेज नहीं चल रहा होता लाइफ में. ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वी शुड बी प्रिपेयर्ड इनफ एंड वी शुड बी अवेयर इनफ. और बात हुई आपके कॉन्फिडेंस की, तो देखिए जितने हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं ना, उतना ही हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि भाई ठीक है, आई कैन डू दिस, आई कैन टेक द डिसीजन, आई एम द डिसीजन मेकर, आई एम द चेंज मेकर एक्चुअली. ठीक है, तो जब हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, तो इट डजंट नेसेसरली मीन कि भाई सिर्फ हम पैसे की बात करेंगे, जी ये अगर इतना कमाती है तो भाई ये बहुत अच्छी, ये इतना कमाती है. नो, इट्स अबाउट गिविंग यू और बूस्टिंग योर कॉन्फिडेंस, गिविंग यू अ राइट टू टेक योर डिसीजन कि भाई मैं अपनी जिंदगी में डिसीजन ले सकती हूँ. ठीक है, मैं तो आजकल मैं जिस तरह देखती हूँ, आजकल का जो एक वो चल रहा है दौर, मैं तो कहती हूँ दिस माइंडसेट शुड बी taught at a very young age. Teach them young. आजकल के बच्चों को मैं कहती हूँ अभी से उन्हें भाई बताएं बजटिंग कैसे करनी है, प्लानिंग कैसे करनी है, सेविंग कैसे करनी है. आजकल के बच्चों को दे हैव वेरी इजी एक्सेस टू एवरीथिंग. ठीक है, उनको पता है भाई हमारे हाथ में गैजेट भी आ जाएगा, हमारे हाथ में आईफोन भी आ जाएगा, हमारे हाथ में आईपैड भी होगा, सब कुछ होगा. मैं ये नहीं कह रही कि ना दे उनको, बिल्कुल दे, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा उनके माइंड में ये भी इनकलकेट करें कि भाई दीज थिंग्स आर नॉट सो इजी टू गेट. ठीक है, उन्हें इसी छोटी सी उम्र में अगर हम ये माइंडसेट अगर हम उनका कल्टीवेट करना शुरू करें कि भाई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस किस तरह आएगी, इसी तरह आएगी ना. हम बजटिंग, सेविंग, प्लानिंग बचपन से अगर हम देखेंगे तो ही जो है, देखिए एक सर्टेन एज पे जाके एकदम से तो किसी का माइंडसेट या पैराडाइम शिफ्ट नहीं हो सकता. Like if you hit a certain age, like in 30s or in 40s, so you cannot, overnight suddenly change your mindset. तो जिस तरीके के हम आज के दौर में रह रहे हैं या टाइम में रह रहे हैं, it's very necessary that we should be equipped with all the uncertainties, because there's no one in your life that can walk you through the life in the last step of your life. हर कोई, चाहे वो आपके माँ बाप हो, आपका पार्टनर, कोई भी आपको आपको करके तो आखिरी तक नहीं चलाता ना. You are the own decision maker. तो मैं तो इस पर बहुत ज्यादा वो करती हूँ, बहुत ज्यादा एडवोकेट करती हूँ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को कि भाई आप देखें ग्लोबली 1 in every 3 women suffer domestic violence. ठीक है, we cannot neglect this, we cannot negate this point. और पाकिस्तान की बात करें तो बहुत ज्यादा ये चीज होती है. ठीक है, कि बात वही आ जाती है कि जो औरत घर में बैठी है वो उतनी ज्यादा सप्रेस होती है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि भाई हर जगह ये हो रहा है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट मेजॉरिटी एज पर द स्टैट्स, एज पर द यूएन रिपोर्ट कि भाई 3 में से 1 औरत जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है. क्यों है भाई? वो इसीलिए है क्योंकि वो घर पे बैठी हुई है, वो सप्रेस है, उसे पता है कि मैं कहाँ जाऊंगी. अगर वो इतनी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तो ऑब्वियसली उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा, उसकी अपनी एक ओन आइडेंटिटी होगी. हम यहाँ सब बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वी ऑल आर सक्सेसफुल वीमेन, हमने अपनी एक आइडेंटिटी बनाई है. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आई बिलोंग टू अ वेरी गुड, वेरी सेन एंड वेरी स्टेबल फैमिली बैकग्राउंड. तो मुझे भी हर कोई ये बोलता था कि मतलब यू हैव एवरीथिंग, तुम क्यों निकल के काम करती हो, या तुम्हें क्या जरूरत है पैसा कमाने की, तुम्हें जब इतना मतलब तुम्हारे. तो बात वही आ जाती है कि इट्स नॉट अबाउट मनी ओनली. ठीक है, it's about redefining yourself, making your own identity and being your own change maker. I know I'm confident enough, I know how to take and when to take decision for my own self. Nobody is going to take decision for me.
तो ये कॉन्फिडेंस की चीजें आपको कैसे आती है कि जब आप लाइफ में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। और मैं कहती हूँ कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से पहले सबसे ज्यादा जरूरी होती है योर मेंटल इंडिपेंडेंस। If you are not mentally independent, you are going to, suffer all of your life and you're going to get suppressed all of your life. तो ये चीजें देखिए, हर चीज जो है वो आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जी बस हमने अच्छा जी हमारी 50 लाख की नौकरी लग गई, हमारी 5 लाख की नौकरी लग गई, भाई हम बहुत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए, या हमने तो भाई बहुत कोई जो है वो मार का सर अंजाम दे दिया। तो बात वही होती है कि भाई इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट कि आप अपने लिए क्या करना चाहते हो। मैं आई टीच इन द यूनिवर्सिटी फॉर द लास्ट 7-8 years. I've been teaching. I've been into corporate as well. I'm a seasoned corporate professional for the last 10 years. I've been a trainer as well. So I counsel, I mentor a lot of students, diversified students, and I have been teaching in Prague University for the last 8 years. आपको पता है वहाँ डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड से लोग आते हैं। तो आई हैव हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो मुझे आके बोलते हैं कि मैं हम अपनी फैमिली की पहली लड़की हैं जो पढ़ रही हैं, हमारी फैमिली में इजाजत नहीं है, ठीक है। उन्हें घर से निकाल दिया गया कि जी अगर आपने पढ़ना है, जो करना है, तो यू शुड लिव अलोन। हमारे हिसाब से अब बात वही मैं कहती हूँ, अब जब हम कमाने लगे हैं तो दे आर कॉन्टेक्टिंग अस, मैं उन्हें महीने का खर्चा भी भेजते हैं, हम उन्हें पूरी सपोर्ट भी करते हैं। नाउ दे फील सो प्राउड कि भाई हमारी बेटी जो है वो हमें सपोर्ट भी कर रही है, उसने ये पढ़ लिया, उसने ये कमा रही है। तो यू सी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज अ नीड ऑफ टाइम। क्योंकि देखिए हमारी जैसी खवातीन तो आराम से माशाल्लाह से एसी के रूम में बैठ के बात कर रही हैं या गाड़ियों में जा रही हैं, ये सबका भी है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा अगर आप डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड में जाएं तो बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो बेचारी डोमेस्टिक वायलेंस का भी शिकार है, ठीक है। वो डीप रूटेड मिसोजिनिस्ट सोसाइटी के हाथों सप्रेस भी हो रही है डेली, ठीक है। उन्हें उनके राइट्स ही नहीं दिए जा रहे, ना वो कोई अपना डिसीजन ले सकती हैं, ना वो अपनी मर्जी से कुछ कर सकती हैं। कितनी खवातीन ऐसी हैं जो पढ़ना चाहती हैं, उन्हें पढ़ना ही नहीं दिया जा रहा होता, ठीक है। तो ये जो है सोशल इश्यूज के बहुत डीप रूटेड है हमारी सोसाइटी में, एंड वी नीड टू वर्क ऑन इट बेटरमेंट। और बात वही है कि आप तरक्की करेंगे तो सोसाइटी तरक्की करेगा, ठीक है। फिर बात की आपकी मुझे बहुत सारे ऐसी माशाल्लाह बहुत अच्छी खवातीन भी हैं जो बहुत पढ़ी लिखी होती हैं, वो आके मुझसे पूछती हैं कि मतलब अब जैसे दे आर मैरिड, दे हैव किड्स एंड दे टुक अ करियर ब्रेक, दे आर ऑन अ ब्रेक फॉर द लास्ट 5 years 6 years 7 years। तो कहती हैं हम कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, मतलब हम इतने अरसे से घर में, देखिए वी आर लिविंग इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, वी आर लिविंग इन अ डिजिटल एरा। अब तो इतने 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 मौके हैं कमाने के। अगर मैं थोड़ी सी इससे बात करूँ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, हम थियोरेटिकली तो बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कैसे करें, क्या करें, हमें समझ नहीं आता, हमारे पास इतना गैप आ गया है, इतना वो हो गया है कि अब हमें मतलब वी कैन नॉट एंटर इनटू द कॉर्पोरेट, वी कैन नॉट एंटर इनटू गुड पेइंग जॉब। तो मैं हमेशा कहती कि देखिए ऑन योर स्किल्स, Udemy है, Coursera है, there are a lot of website that give you free access to the courses। आप साथ साथ कोर्सेज करें, अपनी स्किल्स पे काम करें, आप ऑनलाइन कमा सकते हैं, ठीक है। आप घर बैठे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यू डोंट नीड टू हैव hefty अमाउंट इन योर हैंड। आप यू कैन इन्वेस्ट एज लो एज 500 रुपीज, ठीक है। उसके 3 होते हैं, हाई रिस्क होता है, लो रिस्क होता है, मीडियम रिस्क फंड होते हैं। इट एज पर योर एपिटाइट, एज पर योर कैपेसिटी, यू कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। सिर्फ आपने बैंकिंग ऐप में अपने आप को रजिस्टर करना है, आप हर महीने 500 रुपए डालने हैं, आपके पास कभी 1000 है, 1000 डालने, कभी 5000 है, 5000 डाल दें, ठीक है। तो वो उसमें क्या होता है, यू यील्ड प्रॉफिट ओवर इट एंड इट्स टोटली शरिया कंप्लायंट एंड हलाल। मैं उसकी प्रमोशन नहीं करें, आई एम जस्ट गिविंग एन ऑप्शन, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग जाके सवाल करते हैं कि जी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात तो की जाती है, लेकिन इतने मौके नहीं है और इतनी सैचुरेटेड मार्केट है कि जॉब भी इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है। तो बात वही आती है, मैं उनको ये कहती हूँ कि भाई अगर आपके पास करियर ब्रेक है या आप नहीं है, तो यू शुड नॉट स्टॉप योर सेल्फ, ठीक है। यू शुड रीडिफाइन, रीडायरेक्ट एंड रीएक्टिवेट योर सेल्फ, ठीक है। एक जगह स्टेगनेंट नहीं हो जाना, कोई बात नहीं अगर आपने करियर ब्रेक लिया है। आई ऑल्सो टुक अ करियर ब्रेक लास्ट ईयर, माई मदर सीरियसली फेल अनवेल एंड आई हैड टू कट माई कॉर्पोरेट जॉब। आई वॉज वर्किंग एज रीजनल हेड एंड मतलब
उसके बाद से सिंस देन आई एम जस्ट वर्किंग एज अ फ्रीलांस ट्रेनर, मैं प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हूँ फ्रीलांस। तो बात ये है कि यू जस्ट नीड टू रीडायरेक्ट योरसेल्फ कि भाई ठीक है, अगर आपकी लाइफ में कोई अप एंड डाउन आ गया तो ऐसी चीज है, यू जस्ट नीड टू एडजस्ट योरसेल्फ कि आप किस तरह जो है वो अपने आप को रीडिफाइन या रीडायरेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आप घर में बैठ जाए हैं, आई एम गोइंग थ्रू अ बैड फेज सो आई शुड स्टॉप एंड आई शुड हॉल्ट एवरीथिंग। नो, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक है, तो बहुत सारे ऑनलाइन कमाने के इतने वो हैं, इतने आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हो, ऑनलाइन ट्यूटिंग free fly है, there are a lot of tons of websites where you can teach online and they pay you on the basis of per hour and in dollars। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं है पता, लेकिन वो बहुत एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज से बहुत ज्यादा कमा भी रहे हैं। ठीक है, तो ये उनके लिए कि जो कहते हैं कि जी हमारे पास बिल्कुल हमारे पास एक्सपीरियंस है, या मतलब हमने तो कभी काम ही नहीं किया और हम जो है एकदम से बुरा फेज आ गया लाइफ में, हम कैसे पैसे कमाए। लेकिन यू कैन ऑलवेज स्टार्ट रिगार्डलेस ऑफ योर एज। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जी आप अगर 30s में हैं, 40s में हैं, 50s में, तो यू कैन नॉट अर्न। आप होम बेस्ड बिजनेस कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कमा सकते हैं, आप कोई भी छोटी सी जॉब से स्टार्ट कर सकते हैं। साइड बाय साइड यू कैन वर्क ऑन योर स्किल एंड वंस यू आर इन द सिस्टम, once you start working, you can eventually switch to somewhere good. It's for your own good. अच्छा डॉक्टर लालारू, कैन यू प्लीज शेयर अस लाइक थोड़ी डिटेल्स कि हम म्यूचुअल फंड्स में किस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं? थोड़ी डिटेल्स आप इस पे इस सेशन में दे सकती हैं थोड़ा बहुत, और वी कैन हैव ऑब्वियसली अ डिटेल सेशन विद यू लेटर ऑन, बट अगर इस सेशन में आप थोड़ी बहुत अगर इस पे कुछ इन्फॉर्मेशन अगर दे सकें। देखिए, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल इन दैट रिगार्ड, लेकिन एज पर माय एक्सपीरियंस आई हैव अकाउंट इन यूबीएल, तो वंस आई वाज रैंडमली स्क्रॉलिंग थ्रू माय ऐप, तो उसमें ऑप्शन आ रहा था इन्वेस्टमेंट के नाम से ना, तो देयर आर अ लॉट ऑफ मल्टीपल ऑप्शंस टू इन्वेस्ट। तो उसमें था ये शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट का। तो खैर फर्स्ट आई टुक द फतवा कि भाई ये है भी हलाल है, शरिया कंप्लाइंट है या नहीं है। तो देवर मुझे मतलब जो मैंने पता भी उनका नहीं बिल्कुल सही है, आप कर सकते। तो उसका कि यू कैन इन्वेस्ट फ्रॉम एज लो एज 500 रुपीज। So I randomly put 500 rupees in that, and I invested in the high risk fund. तो फिर अच्छा मैं तो डाल के भूल गई। कुछ अर्से बाद ऐसे ही मैंने खोल के देखा तो वो 500 जो थे वो 650 रुपीज हो चुके थे। ठीक है, तो आई गॉट एन आइडिया कि नो इट्स एक्चुअली वर्किंग, और मतलब ये वर्क कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है। तो मैंने उठा के उसमें ना मतलब आई इन्वेस्टेड लाइक 100,000 रुपीज इन दैट। ठीक है, इससे मेरे पास जितने होते थे, कभी 25,000, कभी 50,000। अब वो इट एग्जैक्टली वर्क लाइक अ स्टॉक। जैसा स्टॉक में वो फ्लक्चुएट होता रहता है, आज प्राइस हाई है, आज लो है। तो इट्स नॉट फॉर द टेम्पररी गेम कि जी कोई चाहता है कि जी आज मैंने 1 लाख रुपए डाले तो बस मुझे 10 दिन में जो है वो 1 के 1.5 लाख मिल जाए। ठीक है, इट्स फॉर अ लॉन्गर टर्म, बिट लॉन्गर टर्म कि भाई आप कुछ महीनों में एटलीस्ट 8 मंथ, 10 मंथ, 12 मंथ, अब मंथली जितना हो सके 500 है, 5,000 है, 10,000 है, 1 लाख है, जितना है आप उसमें डालते हो वो मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, लोगों में क्या होता है, लोग ना एकदम पैनिक कर जाते हैं, जैसे गोल्ड क्रैश हो गया ना, एकदम पैनिक करके हमने महंगा गोल्ड उठाया था सस्ता हो गया। तो इसमें भी लोगों को ना इसी तरह पैनिक अटैक्स आते हैं। तो इट्स फॉर द लॉन्गर रन क्योंकि फ्लक्चुएट करता है, और ऐसा नहीं है कि वो जो है आपकी कैपिटल अमाउंट इरोड हो जाए। देखिए, इरोड जब होती है लोगों में, अच्छा ये कॉन्सेप्ट है क्योंकि हाई रिस्क में होता है कि आपकी अमाउंट इरोजन का खदशा होता है कि आपकी अमाउंट जीरो हो सकती है। अच्छा, अब वो अमाउंट जीरो कैसे हो सकती है भाई? वो तो इसी पे हो सकती है ना, अगर मैंने सिर्फ 1,000 रुपए डाले हो, 2,000 डालो या 5,000 डालो, तो चलो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो जीरो पे हो जाए अगर फ्लक्चुएट हो रही है, डिप आ गया बहुत ज्यादा। लेकिन इफ यू हैव इन्वेस्टेड लाइक इन लैक्स और समथिंग, तो अगर डिप आएगा भी तो कितना आ जाएगा? 2-4 लाख रुपए तो 10,000 का आ जाएगा, 20,000 का आ जाएगा, 25,000 का आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब मुझे तो वो चीज बहुत अच्छी लगी, और मतलब आई कीप इन्वेस्टिंग एवरी मंथ लाइक दैट। मेरे पास जब पैसे आते हैं मैं डाल देती हूँ उठा के। तो वो स्टॉक्स की तरह ही है, उसकी प्राइस फ्लक्चुएट होती है, वो डिप होता है, कभी ऊपर चला जाता है, और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी दे रहा होता है। आजकल जाहिर है अभी जब वॉर हुई है और ये सब चीजें हुई है तो थोड़ा सा डिप आया था, फिर राइज हो गया, फिर थोड़ा सा डिप आया, फिर राइज हो गया। तो ये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज में तो यही होता है, और बट इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन।
Okay, Muneza is also saying I can vouch for Visa and mutual funds. Okay, that's great. So I think that this will be like informative for everyone. सबको ये चीज पता चली कि if anybody wants to, they can like trust on this and they can go ahead. Thank you so much, Dr. Lalaruk, for this amazing information. और यहीं से ही मैं connect करूंगी. Dr. Lalaruk ने जैसे बात की financial independency की, तो हमारे पास we have very own very young Kinza with us, जिसने from a very young age how she started working and how she is becoming financially independent. So हम एक Kinza की success story सुनेंगे, which is very interesting, and I'm sure you all are gonna write her. Yes, Kinza, over to you. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. So firstly, Maria, thank you so much for this opportunity. मैं already अभी 2 sessions सुने and I feel so inspired. और बस आपने success story कहा, but I don't want to limit my potential by saying कि I'm successful enough अभी. There's a long way to go. But I'll begin and मैं सबको बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने एक बहुत छोटी एज में अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया था, वो भी विद 0 इन्वेस्टमेंट. ओके, सो हमेशा से मैं छोटी थी, मतलब अभी भी छोटी हूँ, बट जब से छोटी थी तो मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करने का बहुत शौक था. फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना मेरा मेन गोल था. मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरी मम्मा जो है वो होममेड देसी घी मतलब बनाती हैं, एंड शी सेल्फ इट, बट उनका कोई लाइक सोशल मीडिया पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है. शी इज जस्ट यू नो अ हाउसवाइफ एंड शी डज दैट. उसके अलावा मेरी जो ग्रैंड मदर हैं वो क्रोशे करती थी. कुरेशिया जो होता है मकरामा, उसकी ट्रेनिंग भी देती थी वो, एंड वो गुड्स बना के सेल करती थी. तो बिजनेस करने का आइडिया हमेशा से मेरे माइंड में था, बट मुझे पता नहीं था कि मैं करूँगी क्या. 7 साल की उम्र से मुझे बहुत शौक था स्केचिंग, ड्राइंग, कलरिंग वगैरह का. मेरे माइंड में भी नहीं था कि जब मैं 18 साल की होंगी तो मैं स्केचिंग का बिजनेस स्टार्ट करूँगी. तो मैंने स्केच विद किंजा के नाम से अपना एक पेज स्टार्ट किया विद लाइक 100 फॉलोअर्स थे मेरे कुछ. और आज आफ्टर लाइक a lot of years and hard work, I have more than 30 plus products and services on my page and more than 3000 followers. So मैंने एक पेन और पेपर के साथ स्टार्ट किया था बिकॉज यू नो स्केचिंग है, बट और वो मेरा पैशन था. तो आज मैं जितनी भी खवातीन से मतलब मुखातिब हूँ, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ फॉलो योर पैशन एंड टेक दिस एज अ साइन कि आपने करना है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है. बिकॉज देखिए, हम मुसलमान औरतें हैं एंड हमारे पास इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं. वो एक बिजनेस वूमन थी एंड उन्होंने अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट किया था. तो आई थिंक इट इज़ अ गोल जो हमें बिल्कुल पूरा करना चाहिए. एंड उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि आई ऑल्सो डू सेशंस एंड आई मोटिवेट यूथ. जैसे कि मेरा एक मुझे एक इवेंट में इनवाइट किया गया था. आई वाज अ गेस्ट स्पीकर फॉर शेपिंग द फ्यूचर ऑफ यूथ एंटरप्रेन्योरशिप. So that was in PC Hotel, and वहाँ पे my niche was basically youth. But now I'm looking at you guys, and सिर्फ youth हमारा future नहीं है, आप लोग भी हमारा future है. And I am so glad कि मतलब मैं आप लोगों से आज अपनी story share कर रही हूँ. और बहुत अच्छा लग रहा है सुन के कि हमारे पास इतनी talented औरतें हैं. And just again I want to say कि आज International Women's Day है, तो you all are doing great and wish me luck too. और मेरे पास एक और गुड न्यूज़ है शेयर करने के लिए कि मुझे आज ही यूथ इंस्पिरेशन का अवार्ड मिला है. Oh, that's great. Congratulations. Thank you. So the way you have started, Kinza, and inshallah, obviously there are a lot of things for you in future. So we wish you best of luck for your future. और यहाँ पे मुझे एक चीज, जैसे मैंने डॉक्टर लालारुख की भी बात सुनी एंड किंजा भी की भी, सो व्हाट आई बिलीव कि हर किसी में कोई ना कोई स्किल होता है. एवरीबडी हैव लाइक देयर स्किल्स, क्वालिटीज. यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई कि आपकी क्या स्किल्स है एंड देन वर्क ऑन, लाइक उसी के साथ ही यू कैन स्टार्ट योर you know. So इस तरह की just you know thinking about कि I cannot do anything, तो अपने ही जो है ना वो अपने अंदर क्वालिटीज को तराशे जैसे बोलता है, and then उसी के साथ ही just started working. And then एक one more important thing कि रात में कुछ नहीं होता. ऐसा नहीं है कि आज मैंने प्लान कर लिया और आज रात में ही सब हो गया. You have to be like very patient. You have to wait for the things. आपको अपनी consistency के साथ you have to work on your goals,
on your dreams. Or obviously one day you will get the results, as we all have these incredible women, those who have their success stories. तो बट ऐसा नहीं है कि किसी के भी, आई एम श्योर किसी का भी जो है ना एक दो रातों में ही जो है ना वो चीजें नहीं बदलती हैं. You have to be like, you have to stay consistent and patience के साथ, you have to believe in your dreams. Okay, thank you so much, Kinza, for discussing about your story, how you are starting and how you're moving forward. Thank you so much for joining us. Next, we have Dr. Harbanu. She is an educationist. She is a wonderful trainer, and she has a very good topic to discuss about, from dependency to determination. So yes, over to you, Miss Anita. What you are going to share with us today? Thank you very much, Miss Maria. Assalamu alaikum to all the lovely ladies who has actually joined us. And Maria, I would really wanted to, appreciate you for this effort, because this is actually what you are putting in your side, that you, whatever you can do in a way of effort, that you're gathering all the wonderful women together in a platform. So this is something which is coming from a woman for other women, is really something very appreciable. And thank you for giving me this opportunity. I just wanted to start with a small thing which I was just reading a few hours before, and I just thought of sharing that same thing over here. It says that a woman is not just a gender. She is strength, nurture, courage, and determination in human form. कितनी खूबसूरत बात है कि एक औरत को कितनी आसानी से कितने ब्यूटीफुल अंदाज में शेयर कर दिया. अगर हम बहुत ज्यादा डीप कॉन्वर्सेशन में चले जाएं तो देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो मजहब है इस्लाम, माशाल्लाह इतना खूबसूरत, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं. अल्लाह पाक ने हमें इस्लाम के मजहब में पैदा किया है. हमारे इस मजहब में औरत की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, औरत का क्या मकाम है. कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, 3 दफा पहले उन्होंने माँ का जिक्र किया और फिर 4थी दफा उन्होंने वालिद साहब को एड्रेस किया. तो आप देखें कि एक माँ का रुतबा कितना ऊपर है, क्योंकि वो एक औरत है, एक वुमेन है. एक और चीज जो आपके साथ शेयर करूंगी, मेरे नजरिए से जिसको मैं डिस्क्राइब करना चाहूंगी, वैसे तो बहुत सारी पावरफुल क्वालिटीज हैं एक वुमेन के अंदर, लेकिन एक छोटी सी एक्टिविटी है जो कि मैं इस वक्त अभी नहीं करूंगी, लेकिन मैं चाहूंगी कि जो भी इसमें कंफर्टेबल हो तो बात इसको फॉलो कर ले. हम ग्रुप में मजीद इसको बात में कर लेंगे. सो व्हेन वी से वुमन, इट स्टेट्स W से विजडम, O ऑप्टिमिज्म, M मोटिवेशन, A ambition, N nurturing. So I just wanted कि आप लोग अपनी इन सारे वर्ड से, आप अगर नेट पे भी तलाश करेंगे तो आपको मिल जाएगा. Just be one of your kind. For example, if I'll take A, ambition, my name starts from A, let's say, pose, and even not if it's matching with your name, but if I take ambition, so I can describe myself having that ambition factor inside, because I have that quality and I had though. So when I started my journey, the same, मैं मिस निदा के साथ second करूंगी कि my story is quite similar with hers, because when I got married, I was very young. I was just a 17-year-old lady, a girl, and I was not even matriculated. I just got married because my parents were not alive. So obviously, जैसे एक typical घरों में होता है कि एक बेटी की जिम्मेदारी होती है कि उसको उसके घर भेज दिया जाए, ज्यादा बेहतर है. अल्हम्दुलिल्लाह everything went well. But मेरी जिंदगी में मुझे लगता था सिर्फ एक ही मिशन है कि मुझे दावतें करनी है, मुझे खाने बनाने, मुझे बड़े बड़े पतीलों को बहुत इम्प्रेसिव वे में हैंडल करना है. तो एक खातून जो मेरी जिंदगी में आई, मैं उनको बहुत दुआ देती हूँ, मेरी भाभी है, उनका नाम आयशा है. उन्होंने मुझसे कहा, लड़की क्या सारी जिंदगी यही करती रहोगी, वो चेंज नहीं चाहती अपनी लाइफ में, ये भी बहुत जरूरी है. लेकिन क्या अपने आप की कोई आइडेंटिटी नहीं ढूंढनी, जब इतनी कॉन्फिडेंट हो, इतना कुछ देख रही हो, अल्लाह ने तुम्हें यंग भी रखा है, तो कुछ तो करके दिखाओ कि कोई दूसरी औरत तुमसे फायदा उठाए. मैंने कहा, यार ये बात तो बड़े पते की, लेकिन करना क्या, ये तो नहीं बताया. उन्होंने कहा, आप ये पतीलों का ढकना ढके, लिमिटेड करें अपने जो भी आपकी दावतें हैं, और आप पढ़ाई की तरफ आए. आप सबसे पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगी नहीं, आपको एक्सपोजर नहीं मिलेगा, आपको अवेयरनेस नहीं आएगी. उसके लिए आपको पढ़ना जरूरी है. That day was the final day that I thought that I'm going to start my studies. And I was pregnant. I started with matriculation. I did my intermediate, and then I did my bachelor's. So uske baad I started teaching in a very renowned school.
But my being that nature of being ambition was not just stopped there. I wanted, जिसे कहते हैं ना, एक अपने आप से competition. I never had any competition with anybody. Alhamdulillah. मुझे कभी वो envy नहीं था कि भाई ये अगर ऐसी है तो मैं भी हो जाऊं. मुझे ये होता था कि मुझे कहाँ पहुंचना है. This is not my destination. I think so. एक औरत के लिए अपना destination पहचानना भी बहुत जरूरी है. Because when you don't have any direction, when you don't know that where is your destination, so you will always go that, go around, turn around, turn around. आप घूमते ही रहेंगे. So first you need to figure out that what you need to do in your life, because this life is given to you only once, and you have to make it full of it. So from there, I decided that I won't be now dependent anymore, because I had to be dependent for many reasons, not only financial, maybe some other approvals also. Maybe I was lacking some sort of confidence also. But the day when I started my education, एक जो exposure मेरे अंदर आना शुरू हुआ, जो मेरे अंदर अपना confidence आया that I can make my own identity. I started working in a school, and over there I wanted to be the best teacher. I wanted to make my beautiful copies. I had the competition with my own self. And with the passage of 2 years, alhamdulillah, I reached to the level where when I was only in the kitchen making the best shami kebabs in the world, making the best bihari tikka in the world, making the best biryani in the world, then I switched the transition to become the best teacher of that school. And then the journey did not end there. I always had one thing in my mind कि मुझे एक दिन इस स्कूल की प्रिंसिपल बनना है. I don't know how it would happen ever, but I always thought that no, I have to be the headmistress of the city school, where it was near to impossible to be the headmistress, because it's a whole channel. Maria, you would know better कि इस तरह की जो renowned schools होते हैं ये बहुत different way में hiring कर रहे होते हैं. But I knew that I'm going to achieve that. मैं कर लूंगी, because I had that confidence in me. And then from there, my journey started. मैंने बहुत मेहनत की, अपने आप को बहुत रिस्क में डाला कि नो, बहुत सारी चीजें थी लाइफ में which was not easy for me. I had my own children. Obviously, I was a mother of 4 young girls, and I had my own responsibilities. I had to give them the proper time too. I had to nurture them too. But मुझे ये था कि नहीं, मुझे कहीं ना कहीं रुकना नहीं है, मुझे बढ़ना है. मुझे उस डिपेंडेंस से वापस आना है. मुझे अपनी एक शनाख्त चाहिए, अपना पैसा चाहिए, ताकि उसका मुझे किसी को जवाब न देना पड़े. That where I'm spending and how do I treat myself with that money. Although I had got no objections, alhamdulillah, but still there was something in my mind that I have to have my own identity, my independence. 10 saal lage, I became the headmistress of the city school, Gulshan Hadid chapter. And when the first day I was giving this speech, I was introducing myself. So the tears rolled on from my eyes, and it was a very emotional moment for me. So I believe when I can do this, a lady who was not even educated, when I thought of being something, so why not the wonderful ladies around in this group? Definitely you can do it. So dependence is not कि भाई अभी मियाँ से जाके लड़ ले और बोले कि जी मुझे तो अपना हक चाहिए, भाई मुझे तो बाहर निकलना है जॉब करने. No, it's not like that. देखिए, डिपेंडेंस के साथ एक थोड़ा बहुत ना आपको एक बैलेंस आना भी जरूरी है. First, you should know that where is your destination. आप किस चीज के लिए बने हैं, उसको अचीव करें और कामली अचीव करें. कोई भी चीज जब आप रश करते हैं तो उसमें आपको कभी कामयाबी नहीं मिलती. हमेशा जब आप एक चीज को बहुत साफ नियति से आगे लेके जाते हैं तो अल्लाह मियां भी उसमें बरकत देता है. मैं अपनी फैमिली में बहुत वियर्ड लगती हूँ कुछ लोगों को, क्योंकि जब मैं यंग बच्चियों से मिलती हूँ तो मैं उनको सिर्फ ये दुआ नहीं देती कि बेटा अल्लाह मियां तुम्हारी जल्द से जल्द शादी कर दे. मैं कहती हूँ बेटा तुम एक कामयाब इंसान बनो, पहले कुछ अचीव करो लाइफ में, और फिर तुम्हें एक बहुत बेहतरीन लाइफ पार्टनर मिले जो तुम्हारी रिस्पेक्ट कर सके और तुम्हारी अपनी एम्बिशन की रिस्पेक्ट कर सके और तुम्हें उस पे साथ खड़े होके ही शुड बी प्राउड ऑफ यू. तो मुझे लोग कहते हैं क्या बातें करती हो, लड़कियों को बोलती हो जाओ कमाओ, कैसे कमाओ, तो कितनी गलत बात है. लेकिन मैं अपनी बेटियों के लिए भी ये कहती हूँ, मेरी 4 बेटियां माशाल्लाह, और मैं उन सबको कहती हूँ कि फर्स्ट यू हैव टू अचीव समथिंग इन लाइफ. शादी इज नॉट the agenda. It's not the agenda. It has to happen.
because obviously वो तो सुन्नत है, वो आपको करना है. You need to have a partner in your life. Life is incomplete without somebody in your life, but you have to achieve something. सिर्फ डिपेंडेंस नहीं रखना है कि जी अच्छा जी शादी हो जाएगी तो बस मियाँ साहब करेंगे. भाई आज के बाद जो आगे का दौर है उसमें एक आदमी कमा के वैसे भी बहुत कुछ अचीव नहीं कर सकता. आपने पार्टनरशिप में ही लाइफ गुजारनी है. हाँ, आपने एक दूसरे का साथ देना है. आपने 50-50 प्लान करना है. एक बंदा सेविंग करे और एक बंदा एक्सपेंडिचर्स करे, तब जाके एक इक्वालिटी आती है और एक बैलेंस आता है. सो दिस इज द मैसेज टू ऑल द गर्ल्स हियर, स्पेशली मारिया. यू आर अडोरेबल टू मी, वेरी स्वीट हार्ट. मैं आपको भी हमेशा दुआ देती हूँ कि अल्लाह में आपको बहुत कामयाबी दे. आपके अंदर फुली एक जो आपने अपना एक विजन लिया है अपनी जिंदगी का आगे के लिए, आप उसको अचीव करें. एंड देन व्हाटएवर इज कमिंग इन योर लाइफ, open your eyes and then accept that. So this is this Thank you so much, message Ms. to all the lovely ladies in the group. Thank you very much. What you were talking, जो भी आप बात करी थी, मैं तो उसमें गुम हो गई थी, मुझे लग रहा था. Mashallah. It was really wonderful listening you and your Thank you very story. much. You are inspiring us कि आपने जो goals सोचे थे, आपने जो एक dream सोचा था, definitely you worked on it and one day you achieved it. Exactly. So I feel like nothing is impossible अगर आपकी efforts, आप अगर बिल्कुल, efforts बिल्कुल. So thank You you so have to much. have the direction in your life. Yes. You have to have that. Thank you so मुझे much. लगता है एफर्ट से ज्यादा ना आपका तवक्कुल भी बहुत स्ट्रांग होना I चाहिए. was चाहे वो about to किसी say भी चीज, that. चाहे वो बिल्कुल आप सही फाइनेंशियल कह रही हैं. इंडिपेंडेंस, शुक्रिया. जो चीज आप मैनिफेस्ट करते हो और आपको तवक्कुल है, तो बिल्कुल. सूनर और लेटर यू आर गोइंग टू गेट इट. You're right. You're right. तवक्कुल तो हर चीज है. जब आपको तवक्कुल हो गया, लोगों अगर को आप मेरी अभी तवक्कुल की की बहुत स्टोरी कमी ले है. लें, लोग I am तवक्कुल नहीं कर पाते, दे इजीली गिव अप. बिल्कुल आप सही कह रही हैं. I've been unemployed since 9 months now, and I was physically not well. I was mentally not well for due to many reasons. होता है, आपकी लाइफ अपसाइड डाउन आती है. और मैं तो इस चीज पे बहुत बिलीव करती हूँ कि सिर्फ अपनी अच्छी स्टोरीज नहीं बताएं, लोगों को अपने फेलियर्स भी बताएं, लोगों को अपना स्केरी पार्ट भी बताएं, ताकि वो उससे लर्न करें कि आपने क्या देखा, आपने क्या एक्सपीरियंस किया, फिर वो उसको एनालाइज कर सके कि अगर हम कुछ सह रहे तो हम उससे कुछ क्या निकाल सकते हैं और क्या बेहतरी ला सकते हैं. लेकिन आप यकीन करें कि मुझे बहुत लोग कहते हैं मारिया बहुत प्यारी बच्ची है, मेरे लिए बहुत कोशिशें भी करती है, लेकिन मुझे एक इत्मीनान है क्योंकि मुझे पता है मैंने अल्लाह से मांगा हुआ है और मैंने अल्लाह से कुछ मांगा है कि अल्लाह में मुझे यहाँ करना है, आप मुझे यहाँ एक्सपीरियंस करना है, यहाँ जाके सीखना है मजीद. क्योंकि देखिए आपकी जिंदगी तो कभी भी यू कैन नॉट से दैट आई नो एवरीथिंग. द डे व्हेन यू से दिस दैट यू नो एवरीथिंग, देन इट मींस दैट यू हैव फेल्ड ऑलरेडी. So I believe that every day you learn a new thing and the learning never stop. Learning never stop. So मैंने अल्लाह मियां से एक बात की, वो मुझे बड़ा ही तवक्कुल है और यही तवक्कुल मुझे सिटी स्कूल के वक्त था जब मैंने अप्लाई किया था. आप यकीन करें मैंने 10 साल पहले जाके सीवी दी थी और वो सीवी मैंने कभी सोची भी नहीं थी कि 10 साल बाद मुझे आरओ से कॉल आएगी कि हमें आपकी सीवी मिली है, क्या हम आपसे इंटरव्यू ले सकते हैं इस पोजीशन के लिए. तो ये तवक्कुल ही होता है. अल्लाह मियां के ऊपर तवक्कुल अगर आपने कर लिया तो बस फिर तो आप भूल जाएं, सकून में आ जाएं. आपको खुद पता होता है कि जो आपने मांग लिया वो जायज है तो वो आपको देगा अल्लाह मियां. लेकिन आपने सुना होगा कि एक हदीस भी है और मौला अली भी फरमाते हैं कि अपनी ऊंट को रस्सी से जरूर बांधो, लेकिन अल्लाह पे भरोसा रखो, लेकिन अपने ऊंट को रस्सी से भी बांधो. ये नहीं हो सकता कि मैं अल्लाह पे भरोसा तो कर रहा हूँ और ऊंट को छोड़ दिया, रस्सी से नहीं बांधी और फिर बोल दिया अल्लाह ने तुझ पे तो भरोसा किया था, ऊंट चला गया. लेकिन अल्लाह ने दिमाग भी तो दिया है ना. अल्लाह ने दिमाग इंसान को क्यों दिया है? इसीलिए दिया है कि आपके पास अगर ऊंट है तो आप उसकी रस्सी बांधे और तवक्कुल अल्लाह पे करें. आप अपना 100% बिल्कुल. देते हो और चीज में फिर आप तवक्कुल करते हो कि बस हमने अपना पार्ट प्ले कर लिया. बस. व्हाटएवर Rest is up to you. we have Rest done is it up to to the you. max. Now it's on Allah. और वो हमेशा Thank देता you है, very ऐसा much. नहीं I है. really enjoyed this, Maria. और बहुत बहुत शुक्रिया for giving me this opportunity. बहुत मजा आया और I have really learned too many good things after joining this group. Thank you very much, Maria. Who are here with me and those who are sharing their insights और इतनी अच्छी information, like it's for everyone कि how we are motivating each other. हम एक दूसरे को अपनी वही Very बात true. ने कही कि सिर्फ हम सक्सेस स्टोरीज नहीं सुना रहे, यहाँ पे हम वो भी सुना रहे कि लाइफ इज नॉट द बेड ऑफ रोजेस. बहुत Exactly, it's not. डाउन्स आते हैं. तो इसी को ही मैं अभी रिलेट करूंगी. हमारे पास समिया है जिनकी स्टोरी विल बी लाइक यू नो वेरी हार्ट टचिंग. और वही जो बात है कि हमेशा जिंदगी आपकी बेस्ट नहीं चलती है, सब कुछ बहुत अच्छा नहीं होता है, ऊपर नीचे होती हैं चीजें एंड ऑल, बट
मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आप उसको किस तरह ओवरकम करके आप आगे बढ़ रहे हो, फिर आप अपनी लाइफ को स्टार्ट कर रहे हो। True. ठीक है, सो सामिया, ओवर टू यू। आई वांट टू लिसन समथिंग फ्रॉम यू। आपकी स्टोरी में क्या हुआ, Maria, हाउ यू Maria, excuse फेस? me. Maria, जी, may I leave? I have urgent piece of work श्योर to do. श्योर I'll see the recording, inshallah. श्योर, ठीक है? डेफिनेटली, थैंक यू Okay, सो मच। thank you very much. Jazakallah. Allah Hafiz. यस सामिया। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, आई एम समिया ज़ुबैर और मैं माशाल्लाह मदर ऑफ़ 3 हूँ और मैं बैंक में वैसे तो जॉब करती थी शादी से पहले, लेकिन फिर सासू माँ ने कहा जब रिश्ता हो गया था कि बस अब आप रिज़ाइन कर दें, हमारे यहाँ अलाउड नहीं है, तो फिर मैंने रिज़ाइन कर दिया। तो उसके बाद मैं बिल्कुल एक प्रोफेशनल लाइफ से बिल्कुल एक हाउसवाइफ बन गई और बिल्कुल भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से मैनेज करना है चीज़ों को। इवन कि मुझे अंडा तलना भी नहीं आता था, सब कुछ मुझे सिखाया, सब कुछ मेरी सास ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया माशाल्लाह। और उसके बाद फिर मुझे आहिस्ता-आहिस्ता ऐसा लगने लगा कि ये एक शायद गलत डिसीजन था, मुझे इंडिपेंडेंट होना चाहिए था। मैंने ये क्या कर दिया? मुझे ऐसा लगा। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने घर से ही मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, एक एंड्रॉयड मोबाइल मेरे हाथ में सिर्फ़ होता था और मेरी डिग्रियाँ मेरे पास थी अलमारी में रखी हुई। बस मैंने कुछ ना कुछ करना शुरू किया, कभी छोटी-सी रीसेलिंग कर ली, कभी कुछ कर लिया, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैं मैच मेकिंग की तरफ आई और मैंने रिश्ते करवाने शुरू किए और फिर मैं उसमें आगे बढ़ती गई, इतनी आगे बढ़ती गई कि एक हमारी कंसल्टेंसी सर्विस बनी और उसकी मैं फाउंडर्स में से एक थी। तो 4 फाउंडर्स थी हम चारों ने मिलके एक पूरा कंसल्टेशन बनाया मैरिज ब्यूरो का। लेकिन वहाँ पर क्योंकि ये बात अभी हुई थी ना कि सक्सेस के साथ आप अपनी फेलियर्स भी बताएँ, तो वहाँ पर थोड़ा-सा मेरा फेलियर ये हुआ कि वहाँ से मुझे किक आउट कर दिया गया, फाउंडर्स लिस्ट में से। कुछ छोटी-मोटी चीज़ें हो गई थी, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे, लेकिन बहरहाल मैंने अपनी चीज़ को छोड़ा नहीं और मैंने अपना सोलो काम करना शुरू किया और माशाल्लाह आज मैं खुद अपना जज़्बा कंसल्टेंसी का बहुत बड़ा ग्रुप चला रही हूँ माशाल्लाह। बहुत सारी ख़वातीन मेरे साथ काम कर रही हैं मैच मेकिंग की और जिस ग्रुप ने मुझे किक आउट किया था आज उनके अंदर इतनी डिस्ट्रक्शन हो चुकी है कि मैं उनको देखकर हैरान होती हूँ। कभी-कभी दिल चाहता है बात करूँ उनसे, कहूँ यार ये क्या हो गया तुम लोगों के साथ, लेकिन फिर अच्छा नहीं लगता कि शायद पता नहीं क्यों हमारे पास आ रही हैं। बहरहाल ये एक मेरी प्रोफ़ेशनल चीज़ें थी, लेकिन उसके साथ-साथ बीच में ऐसा हुआ कि मैंने कंसीव किया और उससे पहले मुझे ब्लीडिंग होती थी। मैं ब्लीडिंग के दौरान ही कंसीव हो गया था। मैंने बहुत इलाज करवाया लेकिन उसका मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। कोई भी कुछ बता नहीं पा रहा था कि क्या है। कंसीव के दौरान ब्लीडिंग रुक गई थी और फिर मैंने माशाल्लाह मेरा बेटा हुआ, बर्थ किया बेबी को। उसके बाद सवा महीने के बाद भी मेरी ब्लीडिंग नहीं रुकी, 3 महीने के बाद भी नहीं रुकी, वो कंटिन्यू रहती थी। मेरी ब्लीडिंग आप बिलीव कीजिए 24 आवर्स 7 डे होती थी। इतनी हेवी ब्लीडिंग होती थी कि मैं हैरान थी कि क्या होता है मेरे साथ। मैंने हर जगह ट्राई कर लिया, आखिर को मुझे जिना हॉस्पिटल भेजा तो वहाँ पर बायोप्सी में डायग्नोज़ हुआ कि मुझे सर्वाइकल कैंसर है। फिर वो सर्वाइकल कैंसर मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत एक ऐसी चीज़ थी कि मैं टूट रही थी। एक टाइम ऐसा आया था उसके मेरे इलाज में कि मैंने अपने हस्बैंड से कह दिया था कि बस अब मैं वसीयतें शुरू कर दूँगी कि ये वाला डिनर सेट मेरा इस बेटे को दे देना और ये वाला कुकवेयर मेरा इस बेटे को दे देना और अपना गोल्ड भी और सब चीज़ें बस अब मैं अपनी वसीयत कर दूँगी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे एक ही बात की कि मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे कुछ भी सेल करना पड़े, मैं जो अपनी ज़ात से कर सकता हूँ करूँगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम चाहिए हो। अगर तुम रह गई तो हम सब बना लेंगे वापस। हम वापस उस चीज़ पर मतलब इसी स्टेज पे आके खड़े हो जाएँगे। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। एक टाँग पे वो इंसान मतलब कहते हैं ना खड़ा रहना, बहुत ज़्यादा। फिर मेरा काफ़ी इलाज चला, ब्रेकी हुई, कीमोथेरेपी हुई, रेडियोथेरेपी हुई और ये सिर्फ़ कहने के लिए एक बातें हैं, लेकिन जब मैंने इन चीज़ों को सर्वाइव किया है, मैंने भुगता है अपने ऊपर, तो ये मतलब बहुत कुछ मैंने फ़ेस किया है, जिसको मैं बयान नहीं कर सकती। और कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम में मुझे जिना हॉस्पिटल में बहुत दफ़ा बुलाया गया है, मैंने बहुत दफ़ा वहाँ पे बातें की हैं। इवन के मिनिस्टर्स के साथ भी बैठकर मैंने बहुत सी चीज़ों को कैंसर की डिस्कस किया है। मुझे मतलब उन्होंने अपना
एक तरह से प्रमोशनल के तौर पे रख लिया था, जो अभी बीच में HPV वैक्सीन आई थी उस हवाले से। लेकिन मैं हर जगह यही बात कहती हूँ कि प्लीज़ अपना ख्याल रखें। आपके साथ अगर एक स्पॉट भी आपकी डेट के बगैर आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है? लेडीज़ को अपना इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। कोई भी मतलब लापरवाही वाली बात नहीं है। बिल्कुल अपना ख्याल रखें, हर चीज़ को अपने देखते रहें, आपके पीरियड कितने दिन के हैं और कितने फ्लो से हो रहे हैं और कब आए और कब गए, अपनी एक-एक चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि ये हम समझते हैं कि शायद कुछ नहीं है, हम एक आध दवाई लेंगे ठीक हो जाएगा, ये अंदर ही अंदर क्या बन जाता है हमें नहीं पता चलता। हम इस चीज़ को नहीं सोच सकते। मेरे इस इलाज में तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए मेरे लगे और पैसों के अलावा मेरे बच्चे 3 छोटे-छोटे जो बेबी बॉर्न हुआ था उस समेत, किस तरह मेरे बच्चों ने सर्वाइव किया। मेरी वालिदा सँभाल रही हैं, कभी मेरे जेठ सँभाल रहे हैं, कभी मैं अपने बच्चों को हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, बच्चों को कह रहे हैं कि वहाँ अलाउड नहीं है, बच्चे मम्मा के बगैर रहते नहीं हैं। बहुत कुछ मैंने अपने इलाज में फ़ेस किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा हर 3 महीने बाद एक MRI होता है, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अभी तक उसकी दोबारा से ग्रोथ नहीं हुई है, लेकिन हर डॉक्टर्स का कहना यही है हर वक़्त कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये दोबारा से भी ग्रोथ हो सकती है इस चीज़ की। तो मैं अपनी ज़िंदगी को लेके अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक हेल्दी ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ, जैसे आप सब गुज़ार रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से। मैं एक बहुत बड़े फ़ेज़ से निकल कर आई हूँ, लेकिन अभी भी मुझे डर रहता है कि अब का जो MRI होगा उसमें क्या आएगा? अभी भी मुझे ये डर हमेशा रहता है। But I would add मेरे here कि समिया अभी भी बहुत कुछ कर रही होती है. She is helping people, she is helping women in so many things. और एक सोशल एक्टिविस्ट भी है. तो this really inspires me कि आप खुद किस फेज से गुजरे हो, but even though you are helping people, you have that courage, you have that strength कि आप लोगों को हेल्प कर रहे हो. You don't need help. I think you are so strong enough. Yes. So more power to you and we wish कि आप आगे भी आपके अल्लाह पाक आपको ऐसे ही सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे. And yes, most important is आपको अपनी केयर जरूर करनी है. And इसी से ही मैं अभी जो है ना जो हमारी yes please you can continue. हाँ, बस मैं यही कह रही थी कि हम जिस तरह दूसरे इश्यूज पर बात कर रहे हैं ना, ये वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब हर चीज़ के लिए ख़वातीन को एम्पावर करना है। उसमें सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, सिर्फ ब्यूटी नहीं, सिर्फ हाउस कोट नहीं, बल्कि उनकी हेल्थ के हवाले से भी। तो मैं ये चाहूँगी कि इस चीज़ पर भी आप लोग ख़ास तौर से फोकस करें। Yes, अब थैंक यू इसी सो से ही related. Thank you so much for sharing your very important aspect of life और जो भी लाइफ में हुआ, जिस तरह की आपकी चीजें हुई, how you are still facing it, and inshallah more power to you. Our prayers are always with you, and we are always with you whenever you need us. अच्छा, यहाँ पे ही मैं connect करूँगी Miss Mavish Usman को, who is gonna share with us about self care, self love. जो हम बात कर रहे हैं कि हमें खुद को इग्नोर नहीं करना है, सारी चीजें घर के काम, जॉब, ये वो चीजें सब होती रहेंगी, but then हम अपनी केयर भूल जाते हैं, हम मी टाइम भूल जाते हैं, खुद से प्यार, खुद से केयर, खुद की चीजें, ये सब हम भूल जाते हैं, which is also equally important. तो अभी Mavish, who is a makeup artist, and I have seen her, like I really love her work, and she is gonna share with us some important tips or how you can take care of yourself, how you need to love yourself. So yes, Mavish, over to you. अस्सलाम वालेकुम मारिया, थैंक यू कि आपने इतना प्लेटफॉर्म दिया हम सबको अपने ख्यालात को करने के लिए, और यहाँ मौजूद सारी पावरफुल, ब्रेव, इंस्पायरिंग वुमेन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम मारिया, आपको भी। और सबकी स्टोरी सुन के बड़ा अच्छा लगा, बड़ा वो लगा। तो मेरे पास भी स्टोरी है, बट हम लोग टॉपिक से पहले स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये जो हम जितनी भी खवातीन हैं वो यहाँ पर बहुत सारे रोल प्ले कर रही हैं, जिसमें वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, जैसे मारी ने बताया था, किसी की सास है, तो किसी की ना, बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं जो हम लोग प्ले कर रहे हैं अपनी लाइफ में। खुद के लिए कभी इतना सोचा नहीं, कभी इतना गौर नहीं किया कि खुद को क्या वैल्यू करनी है, क्या केयर करना है। सबके खुशी में खुश होने लगते हैं, सबके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, किसी के उनके खुशी के हिसाब से अपनी लाइफ गुजारा। चलो अच्छी भी बात भी है, बट हमेशा नहीं चलता। लॉन्ग टर्म के लिए चीज नहीं होती ना। तो अब जो ट्रैवल करते हैं बाय एयर, उन लोग एक चीज एग्जाम्पल देती हूँ, उससे मैं उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करूंगी। वो ये दे रहे होते हैं, जब इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में बता रहे होते हैं उन लोग कि भाई आप इमरजेंसी लैंडिंग में फर्स्ट स्टेप आपने ये करना है। वो फर्स्ट स्टेप कभी किसी ने गौर किया है? वो ये होता है कि वो ऑक्सीजन मास्क, वो कहते हैं पहले खुद पहनो,
वो ये कह रहे होते हैं, वो ये नहीं कहते कि पहले अपने बच्चों को पहनाओ, वो ये कह रहे हैं पहले खुद पहन के फिर दूसरों का हेल्प आउट करो। इट मीन्स कि अपना जग जो भरना है वो पहले खुद अपना भर लो, फिर उसके बाद जाके आप अपने और पार्टनर्स को, पेरेंट्स को, उसको बता के आप एक क्वालिटी टाइम दे पाओ। क्वांटिटी तो किसी क्वांटिटी आप दे पाओगे वो जब हम क्वांटिटी देते हैं ना तो हमें टैग लग जाता है ऊपर कि हम फारिग हैं। तो हमें क्वालिटी नहीं, हमें क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी तो हमें नहीं चाहिए। क्वांटिटी ना बच्चों को चाहिए ना मियाँ को चाहिए, वो भी वो हो जाएंगे सारे। तो हमें मेन टॉपिक यही है, हमें सेल्फ केयर और सेल्फ लव में बड़ा फोकस रखना है अपने आप को। और सेल्फ केयर तभी होती है जब हम इस बात को वैल्यू करें। और सेल्फ केयर आजकल हमारे मुल्क में सेल्फ केयर समझा जाता है कि महंगा तरीन स्पा ले लें या पार्लर चले जाएं या सैलून चले जाएं, शॉपिंग कर लें, वो सेल्फ केयर होती है। सेल्फ केयर का मतलब ये भी नहीं, ये नहीं है बिल्कुल भी। सेल्फ केयर का मतलब है अपने अपनी अपनी पोटेंशियल, अपने इमोशनल, अपनी हेल्थ को फोकस करना, और खासतौर पर खुद को केयर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन खुद के लिए रखना, वो सेल्फ केयर है। सेल्फ केयर इतना मुश्किल भी नहीं है, आप 1 घंटा खुद के लिए निकाल लें तो क्या मुश्किल होगा? कभी, ये कभी भी नहीं हो सकता। खुद के लिए 1 घंटा 2 घंटा आप बच्चों के लिए निकाल दो, सब चीजें निकाल दो, कोई मुश्किल चीज नहीं है। और इसी तरह जो सेल्फ लव है, वो सेल्फ लव सब समझते हैं ईगोइस्टिक लोग करें, बहुत गुरूर आ जाएगा, ये चीजें आ जाएंगी। तो सेल्फ लव भी कोई गुरूर वाली चीज नहीं है। सेल्फ लव एग्जाम्पल वो होती है अगर आपके अंदर कोई खामी है, आपको पता है, बट आप स्कोप अप करो, हाँ मैं कर सकती हूँ, हाँ जब हो सकता है, तो यही सेल्फ लव होता है। सेल्फ लव लोग समझते हैं यार ये बड़ी ईगो लड़की है या वो गुरूर वाली है इसलिए सेल्फ लव में फोकस करती है। नहीं, सेल्फ लव का मतलब है अगर आपके और आपको लोग एहसास दिलाने वाले वैसे भी दुनिया में बहुत है, यार तुम ऐसी नहीं हो, थोड़ी चेंज हो जाओ, वैसी नहीं हो, तो आप सुने, यहाँ से निकाल रहे हैं उसको, अपने आप पे फोकस करो, आप ये कहें हाँ मैं कर सकती हूँ, हाँ मैं कर लूंगी, ये है सेल्फ लव। आपको नहीं भी, मैं बचपन से मैं एक ऐसी हूँ जो मुझे क्वेश्चन का आंसर नहीं आता था, ये मैंने अपने बचपन का बता रही हूँ। मैं ऐसे हाथ खड़ा करती थी कि मुझे सब आता है, वो मेरे मैनिफेस्ट था। मुझे, मैं कुछ ना कुछ बोलती थी, मुझे आ जाता था। ये मेरे बचपन से ही अभी तक चलता है कि मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला, बट मैं हाथ उठाती थी, हाँ मुझे बहुत अच्छा तरीके से आता, मैं कर लेती हूँ। इसी तरह मैं अपनी लाइफ की थोड़ी सी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ अभी नेक्स्ट, सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव को कैसे मैंने अपनी लाइफ में यूज किया। मेरे शादी को माशाल्लाह 11 ईयर हो गए और मेरे बच्चे माशाल्लाह 3 है, और तीनों सिजेरियन है, बहुत सीरियस सिजेरियन वाले बच्चे मेरे। तो शादी के शुरू 1 to 6 ईयर मैंने सिर्फ बच्चों को एक क्या नाम है क्वांटिटी टाइम दिया, जिसमें मैं अपने घर में अपने घर वालों को, ससुराल मायका, एक क्वांटिटी टाइम दे रही थी, लिटरली क्वालिटी टाइम उसमें नहीं था। आखिर में मैं बहुत चिड़चिड़ी अजीब सी चीख पुकार चल गया था कि ये क्यों नहीं टाइम पे हो रहा, वो टाइम पे क्यों, बहुत पर्टिकुलर रह गई। फिर मैंने उस दौरान शुरू के 6 सालों में मैंने अपने आप को खुद रिकॉग्नाइज किया कि मैंने अपने आप को वक्त देना, जो मैं पहले शादी से पहले करती थी, जिम, एक्सरसाइज, स्विमिंग, वो मैंने करना खत्म कर दी थी। फिर मैंने ड्यूरिंग मेरे बच्चे 2 हुए थे तो मैंने अपने आप को लाइफ के 2 आवर्स मैं देती थी, चाहे वो सुबह अर्ली मॉर्निंग फजर के वक्त हो, फजर के बाद हो। जो मुझे पसंद था वो था एक्सरसाइज, कार्डियो करना। उस वक्त मैं बहुत हद से ज्यादा कार्डियो करती थी, बट वो मेरी हेल्थ के लिए तो सही नहीं था, बट मैं कहीं ना कहीं रिलैक्स फील करती थी वो कार्डियो करने के बाद। तो इसी तरह जब मेरी लाइफ थोड़ी और आगे गई, तो जब मैं शादी के 9 या 10 साल में पहुंची, तो मुझे कुछ साल, अभी 1 साल पहले मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन का वक्त गुजरा था। मेरे नाना को कैंसर डायग्नोस हुआ था। वो मेरे नाना मेरे बाबा से भी ज्यादा मुझे बढ़ के, मुझे बचपन से उन्होंने पाला, तो मुझे ज्यादा अटैचमेंट रही उनसे। तो बस जब वो नाना का इतना सुन के मैं हर रोज डिप्रेशन की इसमें जा रही थी, तो मेरे नाना ने कहा था तुम करो, जो करना है करो। तो मैंने उस वक्त वो सेल्फ लव को अपनी लाइफ में यूज किया कि मैं 10 से 11 साल पीछे चली गई थी। मैं किसी से मिलती नहीं थी, मैं किसी से बात नहीं करती थी, ना मेरा सोशल लाइफ था, कुछ नहीं था। तो फिर मैंने अपने आप को कहा महविश तुम अभी भी कर लोगी। सेल्फ लव वो था कि मुझे पता था मैं बहुत पीछे हो गई हूँ। मैं अब ना इंस्टाग्राम को यूज करना जानती हूँ, ना मैं अपने वो सोशल सर्कल को जानती हूँ, क्योंकि मैं पहले भी एक मीडिया इंडस्ट्री से ही थी। मेरे आसपास सारे एक माशाल्लाह बिजनेस, पूरा मेरे फैमिली में मेरी बहन से लेके, मेरी भाभी से लेके, मेरे बाबा, मेरे मियाँ, सब लोग एक बिजनेस बहुत नाम कमाया हुआ उन लोगों ने। बट मुझे था कि मैं खुद के लिए अभी नहीं, बट मैंने उस वक्त भी बोला मैं कर सकती हूँ, मैं करूंगी। और मैं उस लाइफ में घुसी, और जो मैंने अपनी लाइफ से ये चीजें सीखी कि मैंने अपनी दोनों लाइफ में दोनों चीजें, सेल्फ केयर और सेल्फ लव को, दोनों मैंने यूज किया। क्योंकि मैं उस लाइफ में मैं हारने वाली थी, क्योंकि मैं एक तो मेडिसिन भी ले रही थी, क्योंकि बहुत ज्यादा, और मेरी बॉडी में थायराइडिज्म बढ़ गया था। मेरी बॉडी जो ग्लैंड से ही नहीं खेल रही थी, मेरी बॉडी खेल रही थी, मेरी एंटीबॉडीज बढ़ गई थी, और जो मैं पूरी लाइफस्टाइल रहती थी फिट, सब चीजें वो मेरी बिगड़ गई थी।
अगर मैं उस वक्त 6 साल पहले मैं सेल्फ केयर को यूज ना करती तो मैं आज जो दिख रही हूँ आई मे भी हूँ वैसी ना। और मेरा जो इंडस्ट्री, जो मेरा काम है, वो जब जो दिखेगा वो बिकेगा वाला सिस्टम है। मतलब जो आप दिख रहे हो, क्योंकि इफ यू लुक गुड देन यू फील गुड। मेरा मंत्र यही है। अगर मैं, मतलब ये खूबसूरत होना नहीं है, बट अगर आप एक चीज करो, अब आप मेकअप करके थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश फील करो, इवन आप एक्सरसाइज से भी आप मेजर करो, आप एक्सरसाइज करो। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मैं ऑन ट्रेडमिल या जब मैं जिम जाती हूँ तो मैं बहुत एक दिमाग में चल रहा था, यार मैं उसको ये आज बताऊंगी, अपनी बेटी को डांटूंगी या मेड को ऐसा कुछ बोलूंगी क्योंकि टाइम से रूटीन से काम क्यों नहीं हुआ। मैं लिटरली बता रही हूँ, आप एक्सरसाइज करो या कोई योगा करो या नमाज पढ़ो, आप उसके बाद अपने आप को एक चेंज फील करोगे। प्रॉपर टाइम देगी, ये नहीं जल्दबाजी में नमाज पढ़ा, जल्दबाजी में हैवी होके कुछ नहीं करना, आपने प्रॉपर टाइम देना उसको। इसीलिए मैंने बताया, अगर मैं ये 6 साल पहले अपने लाइफ में सेल्फ केयर को ना इंटरेक्ट करती, ना मैं डालती, तो मैं आज जो मैं आप लोगों के पास बोल रही हूँ वो भी ना बोलती। क्योंकि वो सेल्फ केयर मैंने किया। मैंने उस वक्त तो लोग बोलते थे, मैं सबको बोलती थी 2 घंटे निकाल लो लाइफ के, सिर्फ 2 घंटे, एंड 2 घंटे इनफ है, आप रिचार्ज हो जाओगे, आप करके सिर्फ देखो। एंड मैं अपनी यहाँ वुमेन्स में बैठी हुई सबको मैं एक 3 टिप्स देना चाहूंगी जो अपने लाइफ में यूज करें। आप करके देखें, हर रोज अपने आप को शीशे में बोलें कि मैं काफी हूँ, मैं अपने लिए केपेबल हूँ और मैं कर लूंगी। ये करके देखें, आपको खुद इतना बड़ा चेंज लाइफ में नजर आएगा कि आप फिर मुझे बोले कि बाकी ये चीजें यूज हुई हैं। और अपनी लाइफ में सबसे पहले अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें। सबके लिए करेंगी, जब सब आप खुद ठीक होंगी तो सबके लिए कर पाएंगी। जब आपका जग, या पहले एग्जाम्पल भी, आपको जग का खुद ही खाली होगा तो आप क्या पानी दूसरों को देंगे। तो इसलिए आप सबसे पहले ऑक्सीजन का मास्क खुद भरें, अपनी क्वालिटी, अपनी वैल्यू को समझें, फिर आप दूसरों को प्रोवाइड करें। और क्वालिटी से, क्वांटिटी नहीं दे किसी को भी। मैं कहती हूँ क्वांटिटी चीज कुछ ना दे, आप क्वालिटी पे फोकस करें। क्वालिटी आप बच्चों को देंगी तो आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। तो बस यही है। तो जब औरत अपनी वैल्यू को समझ लेती है तो फिर दुनिया भी उसको समझती है। ये मैंने चीज समझी। जब आप किसी के लिए, क्योंकि दुनिया ऐसी चीज है, जब मैं इस इंडस्ट्री में आई तो मैंने सबसे, वही मेरे सब दोस्त यार सब चीजें इंडस्ट्री में थे, जब मैंने उनसे पूछा कि यार क्या चलना, किसी ने कोई हेल्प नहीं की, किसी ने कोई हेल्प नहीं की। सबने, जब अब मुझे लगता, अब मैं लम्बे से एक सवाल करती रहती हूँ, वो कहती हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं महविश क्या किया, अभी तक क्या हुआ। मैंने कहा यार मैं किसी को जवाब नहीं देती। मैं कहती हूँ जब मैंने ये मैनिफेस्ट कर लिया कि मैं मेहनत कर रही हूँ और औरत को ये करना है, मेहनत करना है, फिर उसका रिजल्ट अल्लाह पे छोड़ दें। किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है कि क्या रिजल्ट आने वाला है, क्या नहीं आने वाला। आप करें और मैनिफेस्ट हमेशा खुद के लिए अच्छा करें। खुद को ऐसे समझे कि मैं ही बहुत कुछ हूँ। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। खुद से सेल्फ लव करना कोई बुरी बात नहीं है। तो बस एंड यही करना चाहूंगी कि अपने आप को वैल्यू करें, अपने आप को टाइम दे, अपने आप को प्रायोरिटी में रखें, अपनी हेल्थ को फोकस करें। क्योंकि हेल्थ वही, आपकी हेल्थ अच्छी होगी आप सबका कर पाएंगे। तो साइकिल ये, जब औरत ठीक होती है ना, औरत ही पिलर है घर का। अगर औरत की पिलर में ही खराबी है थोड़ी सी, मतलब वो नहीं कर पा रही मैनेज, तो सारा जो ब्रांचेस है वो कैसे पानी पिएगा। Very thank you so much, Mavish, for sharing all this. And you are seriously an energetic person. आपको देख के सुन के मुझे सुनते ही एनर्जी आ रही है। मैं हमेशा से ऐसी रहती हूँ। मैं चाहती हूँ, मैं जब मैं उस वक्त, मैं बहुत पहले की बात बता रही हूँ, मैं उस वक्त भी लोगों को बोलती थी 2 घंटे निकालो। उस वक्त हंसते थे, बहुत पहले की बात है, बट मैं निकालती थी। मेरे पास वीडियोस है, पिक्चर्स है पोस्ट करने को। मैं इंशाल्लाह इन फ्यूचर करूंगी। मेरे पास, मेरे बच्चे छोटे छोटे, वो खेल रहे हो, मैं अपनी एक्सरसाइज करती थी। मैं दुनिया यहाँ चली जाए, वहां चली है, इवन घर में बहुत इंपॉर्टेंट काम है अपने, वो 2 घंटे पूरे करती थी। चाहे वो रात में हो, फजर के बाद हो, कुछ भी हो, वो 2 घंटे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं वो 2 घंटे खुद को दे दूं तो मैं सबके लिए अच्छी हूँ। अगर वो 2 घंटे मैं नहीं देती थी, मैं किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे अंदर पावर ही नहीं, मैं कितना करूंगी सबके लिए। और Yes, exactly. बस यही है, वुमेन्स अपने आप को पहले प्रायोरिटी में रखें, फिर उसके बाद सारे ब्रांचेस से पानी देना स्टार्ट करें तो बहुत अच्छा पानी जाएगा इंशाल्लाह। Exactly. Hopefully ये जो आपने आज फील हो रहा है कि माशाल्लाह इतना ग्लो आपके ऊपर आ रहा है ना, तो वो लग रहा है कि वाकई आपका टाइम होता है। हाँ, माशाल्लाह। ये कर आप लिया मेरी, मैविश ने। अगर मेरी हेल्थ पे फोकस, मेरी हेल्थ अभी इवन मेरी हेल्थ वो है कि मुझे थायराइड अभी भी है, मेरा गया नहीं है थायराइड, बट मैं बहुत, मेरा वेट, मैं हमेशा से 0 साइज रही हूँ, बट ये थायराइड, ये डिप्रेशन, सबसे बड़ा औरतों का मसला डिप्रेशन है। मैं यकीन नहीं करती कि माइंड वर्क क्या चीज है ये, बट मेरे ऊपर जब आया, जब मेरी बॉडी बल्की होना स्टार्ट हुई, मेरा फेस बड़ा हो गया, और ये वेट, मेरी लाइफ रिजीम में एक्सरसाइज मस्ट है। मैं सुबह 6:30 बजे उठ के एक्सरसाइज करती थी, बट वो भी अगर मैं वो 6 साल में स्टार्टिंग में गया ना, मेरा सेल्फ केयर नहीं करती, तो मैं आज भी ये दिखने के लिए, क्योंकि मेरा वेट फौरन बढ़ता है थायराइड पे, और मेरा थायराइड ही डिप्रेशन से बढ़ता है, मेरा एंटीबॉडीज बढ़ती हैं, तो मतलब बॉडी मेरी बड़ी होती है उस वक्त।
तो मैं उस वक्त ना ये करती तो मैं आज शायद, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंट वही, अगर मैं दिखती सही, खुद को सही हूँ, तो मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट बहुत फील कर रही हूँ। तो इसलिए मैं कहती हूँ वक्त दो अपने आप को। औरतें थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए हो, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। मारिया के पास नंबर भी है मेरा, सब चीजें हैं, ग्रुप में भी नंबर है। तो मैं एज एजुकेशनिस्ट भी हूँ, एज अ इन्फ्लुएंसर भी हूँ। अब बनने की कोशिश, इन्फ्लुएंसर भी बनने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरी सारे फील्डिंग जो आसपास है वो सारे इन्फ्लुएंसर और सारे मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक है। तो बस कोशिश ना करें, आप ऑलरेडी बन गई हैं। हमारे लिए you are already an influencer and the way you have explained today, और जिस तरह आपने अपनी आपके फेस पे ग्लो आ रहा है, what you are actually doing वो नजर आ रहा है. So definitely these tips will be very helpful for all of us. Thank you so much for sharing all this. अब हम इसको with the last हमारी जो है जो सक्सेस स्टोरी हमसे शेयर करेंगी सना समत. सना की भी स्टोरी कुछ ऐसे ही है, how she started working on herself after marriage, after kids, किस तरह उन्होंने अपनी सेल्फ केयर स्टार्ट की and what she is doing now. तो yes, अभी हम सना से सुनते हैं. Yes सना. अस्सलाम वालेकुम. मेरा हेलो जी सना, you are audible. अस्सलाम वालेकुम. मैं सना हूँ और मैं काफ़ी देर से ये सेशन अटेंड कर रही हूँ और मुझे लगता नहीं है कि मेरे पास बोलने को कुछ बचा है, क्योंकि सबकी स्टोरीज़ में कहीं ना कहीं आई कैन सी माई सेल्फ, फ्रॉम सेल्फ लव टू हेल्थ इश्यूज़ टू फैमिली इश्यूज़. मुझे लगता था मैं बहुत कुछ सफ़र किया हुआ है लाइफ में, बट व्हेन आई हर्ड, आई थिंक अनीता, when she got married she was 17, तो मैं वहीं बिल्कुल शट डाउन हो गई थी, क्योंकि मेरे लिए अर्ली मैरिज इज अ ह्यूज थिंग. व्हेन आई गॉट मैरिड आई वाज 19 और ऑब्वियसली हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे घर के बेसिक काम करने आते थे, पर एक पूरा घर मैनेज करना, बच्चे संभालना, ये सब मेरे लिए इम्पॉसिबल था. बट आई हैव गॉन थ्रू दिस. लेकिन मैं कहीं फील करती थी, मैं मिस करती थी कि यहाँ मैं नहीं, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट फॉर मी. बहरहाल शादी के बाद 1 साल में एक बेटी हो गई, उसके बाद एक बेटा हुआ, तो डेफिनेटली फैमिली, घर, बच्चों में बहुत साल गुजर गए. लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मुझे अपना आप एग्जॉस्टेड फील होने लगा. लाइक एज मेविश सेड, मैं हाइपर रहने लगी. उसको डील करने के लिए अनीता ने मेविश ने घर में एक्सरसाइजेज शुरू की. मैं होम पर्सन नहीं हूँ, तो मैंने जिम ज्वाइन किया. आई वर्क फॉर माई सेल्फ. इससे बहुत रिलैक्स फील करती थी, लेकिन फिर भी मुझे कुछ और करना था. तो व्हेन आई टर्न 40, द डे आई टर्न 40, आई टोल्ड माई सेल्फ बस सबके लिए हो गया, इट्स माई टाइम. उस दिन मैंने दोबारा एजुकेशन स्टार्ट, नॉट टिपिकल डिग्री एजुकेशन, क्योंकि उस वक्त मेरे लिए मैं अपने आप को 4-5 साल नहीं दे सकती. तो मुझे वापस फील्ड में आने के लिए डिजिटल एजुकेशन की ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे यही करना था. इस वक्त डिजिटल है, तो आप इसको पीछे छोड़ नहीं सकते. तो आई स्टार्टेड डिजिटल एजुकेशन. उसके साथ मुझे वेब डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट आने लगा, तो मैंने वेब डिज़ाइनिंग को अपना मेन सब्जेक्ट रखा और बाकी सारी चीज़ों को साइड बाय साइड लेकर चलती रही. Within 4 months I got my first job and I was doing really well. स्टडीज़ मेरी साथ साथ चल रही थी, मेरे काम भी चल रहा था, फैमिली, घर, बच्चे सब चल रहा था. लेकिन लास्ट अक्टूबर, मैं क्योंकि अपनी अम्मी के साथ रहती हूँ, वो अकेली रहती हैं, इसलिए तो उनको ब्रेन हैमरेज. जैसे सब अपनी लाइफ के ड्रॉबैक्स पे डिस्कस कर रहे हैं, मैं भी यकीनन करूँगी, मैं अपनी वालदा को डेफिनेटली अकेला नहीं छोड़ सकती. वहाँ मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया, मतलब जहाँ मैं अपने आप को सक्सेसफुल फील कर रही थी. आई वाज गोइंग टू जिम, आई वाज गोइंग टू माय जॉब, घर के सारे काम डन, हर चीज़ परफेक्ट चल रही थी मेरे लिए. बीच में मुझे सब छोड़ना पड़ा. अब एकदम से अम्मी मेरी हॉस्पिटल में हैं और मैं एक ब्रेकडाउन से फेस कर रही हूँ कि मैंने जो इतने सालों में रीबिल्ड किया था, अब वो मुझे सब कोलैप्स होता हुआ नजर आ रहा था. खैर, उस फेस से मुझे गुजरना था. मैं अम्मी को छोड़ नहीं सकती थी, बच्चों को भी इग्नोर नहीं कर सकती थी. तो मैंने उस सब के साथ अपना वर्क फ्रॉम होम शुरू किया. थैंक्स टू माय टीम, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे अलाउ किया कि मैं घर से काम कर सकती हूँ. लेकिन अगेन आई एम नॉट द होमली पर्सन, मैं सारा दिन घर नहीं बैठ सकती. आई वांट समथिंग इंटरेस्टिंग टू डू. और मैं थोड़ी सी क्रिएटिव हूँ, कुछ क्राफ्टी हूँ, तो मुझे कुछ करना था. तो नाउ आई एम डूइंग माई जॉब, होम स्टाफ, अम्मी, घर, बच्चे, एवरीथिंग. और उसके साथ मैंने अपना छोटा सा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का बिजनेस स्टार्ट किया ऑनलाइन. आई एम वर्किंग ऑन इट. तो या दिस इज थ्रू आउट माई लाइफ राइट नाउ.
बहुत मजा आता है। प्रॉब्लम्स भी होते हैं जब मैं अपना कुछ काम कर रही होती हूँ, पीछे से कोई आवाज आए, आई सडनली गॉट हाइपर। लेकिन इस सब में ये है कि जब मैं अपने लिए कुछ कर रही होती हूँ, लाइक डूइंग समथिंग क्रिएटिव इज आई एम डूइंग फॉर मी। क्योंकि अगर आप में से कोई क्रिएटिव है तो समझ सकता है कि क्रिएटिविटी जो है वो सेल्फ एक्सप्रेशन, मेरे लिए तो सेल्फ एक्सप्रेशन। तो मैं आजकल, क्योंकि अम्मी को अकेला नहीं छोड़ सकती, ना मैं ऑफिस जा सकती हूँ, ना मैं जिम जा सकती हूँ, तो मैं अपने लिए इतना करती हूँ कि हाँ, बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के कि इस वक्त आपने नानम के पास बैठना है, मैं अपने लिए 1 घंटा वॉक के लिए जरूर निकालती हूँ। लेकिन उसके अलावा बाकी सब मुझे घर से करना होता है और आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। लेकिन आप सबकी स्टोरीज ने मुझे ये मोटिवेशन दी है कि 5 साल में मैं कुछ बहुत बेहतर कर रही हूँ। डेफिनेटली यू आर डूइंग एंड इंशाल्लाह यू विल बी डूइंग मोर। जब आपने बोला कि मैं 40 की हुई तो आई वाज थिंकिंग कि 40 की हुई तो अभी मतलब लाइक you look so young and you were telling 40, तो मैं वहां पे थोड़ा स्टॉप। तो you are doing already great and thank you so much everyone जो भी speakers हमारे साथ थे, you all shared your story। और यहाँ पे मुझे बड़ी एक जो मेरे लिए which I was expecting और था कि सबने अपनी real stories, everybody spoke out of their heart, जो भी उनके दिल में था and they shared their own stories। so this is actually जो है ना, ये empowered circle मैंने बनाया इसी मिशन के साथ था कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे रहे जहाँ पे we can share our stories, whether कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज हैं, कुछ हमारे हार्डशिप्स थे, जो भी थे वी कैन शेयर एंड वी कैन मोटिवेट अदर्स, वी कैन मोटिवेट ईच अदर। हमें एक दूसरे से बहुत लर्निंग होती है व्हेन वी आर शेयरिंग योर ओन एक्सपीरियंसेस। हम एक दूसरे को अपलिफ्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे अभी सना ने कहा कि मुझे किसी और की स्टोरी, वो कहता है ना कि दूसरों के गम देखे तो अपना गम भूल गए। तो मतलब इस तरह आई ऑलवेज वांटेड अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे वी कैन स्पीक आउट, वी कैन like discuss our things or issues, or we are like helping each other। so all of the speakers, those who joined and those who are still with us, thank you so much everyone for being part of today's day session। and inshallah हम आगे भी ऐसे ही we will be uplifting each other, we'll be helping each other। हम अपनी इसी तरह जो है इंस्पायर करते रहेंगे, एक दूसरे को हेल्प आउट करते रहेंगे। and I'm really glad that we have all the incredible amazing women on my platform। and inshallah in future हम ऐसे ही sessions, ऐसी ही चीजें करते रहेंगे साथ में। thank you so much everyone for being part of today's day। Muniza is saying all the best to everyone। thank you Muniza for being here for long this session, you were continuously with us। okay, take care, Allah Hafiz। Okay, Allah Hafiz. Allah Hafiz।